I am Dr. Jitendra Vesar from Nagpur Institute of Technology, Nagpur. Let us start with the new topic of physics, that is semiconductor and magnetism. As per the weightage of CET examination is concerned, this semiconductor physics is having very little weight, that is 3% of overall syllabus, and magnetism is also very small topic, and 2 or 3 questions may be asked in MSCET examination on both the topic, that is semiconductor and magnetism. Let us start with the semiconductor physics exact. Before starting exactly the semiconductor, we should know the concept related to this solid. How solid get formed? You know that solid is formed by this number of atoms, and you know the structure of atom. That atom is having the proton and neutron inside the nucleus and electron just revolving in a fixed orbit. And when number of atoms come together, they form the solid. That means that atom is having innermost orbit electron as well as atom is having the outermost orbit electron. And this structure of this atom related to electrons, that is innermost and outermost orbit of this electron, we get the new concept, and with that new concept the band structure get involved in a solid. Dear student, whatever this semiconductor devices, semiconductor topics basically is split into 3 important parts as per the CET syllabus is concerned. First part, where we get how the semiconductor is designed, how the semiconductor is formed, how we get the semiconductor material from which the new electron is get started. Second topic, the semiconductor, when we identify the semiconductor material, then we try to design number of electronics devices related to the semiconductor, and that electronics devices, the question may be asked. Again, third topic is nothing but that is the logical gates, that is related to the digital circuit. Now the first very important part of the semiconductor, how the semiconductor theory is developed, that is nothing but solid. In this topic, we are going to discuss how the energy band is formed in the solid, what are the metal, semiconductor and insulator on the basis of the band structure, how we get this intrinsic semiconductor, what are the concentration of electron and holes inside that intrinsic semiconductor. Then we use the concept of doping in the semiconductor. It's very important concept, remember. Some more question may be asked on the doping concept. Third, after the doping, we get the extrinsic semiconductor, and after the extrinsic semiconductor again get divided into 2 parts, that is N-type semiconductor and P-type. And using the concept of N-type semiconductor and P-type semiconductor, new electrons get developed, and after that we start to design the new electronic devices, that is diode, triode, then the transistor. Nowadays we are going to be used in daily life. How the exactly a band structure is formed? You know that according to the quantum mechanical laws, that atom is having the innermost orbit electron, and that is the fixed energy values, having the quantized energy values. Before that we already studied that every electron or every material particle is having the fixed energy, that is called the quantized energy. Modification is not applicable in the atomic structure in the innermost orbit cell, but modifications in energy level is occur in outermost orbit cell, that is called वैलेंस cell. अभी अभी अपन ने देखा कि एटम्स के अंदर में अब 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इनरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिवॉल्व. Outermost orbit के इलेक्ट्रॉन को अपन ने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोला है, and inside that outermost orbit electron energy level gets depleted. Innermost orbit के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल में किसी भी प्रकार का एनर्जी मॉडिफिकेशन कंसिडरेबल नहीं है. Whatever the modification in energy level, that should be done in outermost orbit of electron. Remember this concept is very.
इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल की जो एनर्जी लेवल है, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहां पे एनर्जी लेवल कहाँ ना कहाँ क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है। और उसी आधार पे जब एटम्स में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन, देन दे फॉर्म द सॉलिड। सॉलिड जब बनेगा, किसी प्रकार का सॉलिड अपन कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ एटम से बना है। और एटम में क्या, इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के लिए भी अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इस प्रकार से उसकी एनर्जी लेवल जो है वो समवट क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगे, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्प्लिटिंग होने के कारण एक नया बैंड स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जहां पे रहती है। एंड दैट एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्प्लिटिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को जब अपन ने बोला है वैलेंस। एंड जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रहते हैं, जिसकी एनर्जी वैल्यूज अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज नथिंग बट इज कंसिडर्ड एज ए वैलेंस बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियली बाय द बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे अपन कंसीडर कर रहे हैं, सपोज सोडियम का एटम है अपने पास। सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सोडियम का देखा होगा, तो वहां पे 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन को अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। रिमेंबर, इनर सेल्स के ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। करंट कॉम्बिनेशन के लिए, करंट फ्लो के लिए अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन वैलेंस शेल, दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के आधार पे अपने को एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर सामने है, और एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे अपन ने सॉलिड को कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। इफ यू गो थ्रू द डायग्राम, डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दैट you put up your mobile phone in horizontal way so that you can observe presentation. This innermost orbit electron, there is no modification of energy level is took place, and this is the outermost orbit electron. There is somewhat modification in energy, that is energy level gets split, and that splitting in the energy level is called valence band. Therefore, by Boltzmann law of thermal equilibrium, initially the electron is present in the valence band only, remember. And whenever this valence band electron could not jump to the conduction band, there is no chance of a conduction at all. करंट कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वैलेंस शेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ ना कहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना चाहिए। कंडक्शन बैंड इज नथिंग बट इट इज अपर मोस्ट एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू द वैलेंस बैंड। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर अपन ने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। और ये बैंड स्ट्रक्चर सॉलिड के अंदर में ध्यान में आने के बाद ही अपने को कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर थ्योरी, जो मेटल्स के अंदर में होता है, हाउ व्हाई दैट मेटल इज कंडक्ट, व्हाई द इंसुलेटर कुड नॉट बी कंडक्ट, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इज डेवलप्ड, दैट। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल है, जहाँ पे अभी अपन ने बताया, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ना कहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब उनको क्या करना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए कंडक्शन बैंड में अवेलेबल, तभी वो मटेरियल वहाँ पे कंडक्शन देना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मेटल्स को अपन डिजाइन कर, जैसे अपन सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैटेगरीज किया है। पहला मेटल्स है, दूसरा है इंसुलेटर, जो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, मेटल्स और इंसुलेटर, 2 ही कैटेगरीज अपने को पता थी सॉलिड की। लेकिन उसके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के बाद अपने को एक सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर वहाँ पे ध्यान में आया, और ऐसा दिखाई दिया कि कुछ कुछ एलिमेंट सेमीकंडक्टिंग नेचर, सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर वहाँ पे दे रहे। तो मेटल में बैंड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, देखिए। इन जनरल इन मेटल all these electron is available in valence band, every element. Remember that at rest position by Boltzmann law of thermal equilibrium, every electron is available in valence band only, no electron is available in conduction band. Our requirement that whatever the energy electron get available in the conduction band, then on the basis of that, that particular material start to conduct. Conduction कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है।
लेकिन बोल्ट्जमैन का इनिशियली कहना यह है कि कोई भी मेटल के अंदर में, कोई भी मटेरियल के अंदर में, एलिमेंट के अंदर में इनिशियली बाय द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम वैलेंस बैंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए उनको एक्साइट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन प्रेजेंट इनर्शिया में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर अपने को अच्छे नंबर लेना है देन आवर प्रायोरिटी शुड बी दैट अपन उस प्रेजेंट इनर्शिया से बाहर उठ के एक्साइट हो, ताकि एक्साइटेशन एनर्जी से अपने को उसी प्रकार से कंडक्शन के लिए वो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनिशियली जो मेटल के अंदर में स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड एंड देयर इज पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड व्हिच वी ऑब्जर्व। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा बोला है, कुछ कुछ मेटल के अंदर में अपन ने बोलते हैं कि ज्यादातर मेटल्स हेवीली कंडक्ट करता है। मेटल हेवीली क्यों कंडक्ट करता है? अपन ने बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे कंपैरिजन किया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में एनर्जी गैप रहती है, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होता नहीं, तब तक वो मटेरियल कंडक्ट नहीं करता। लेकिन मेटल के अंदर में क्या हो रहा है, जैसे अपन ने बताया कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी अपने को सिल्वर में मिली। उसके बाद कॉपर को अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, टंगस्टन फिलामेंट को अपन कंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, आयरन रॉड को अपन कंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। सिल्वर मटेरियल ज़्यादा महंगा रहने के कारण डेली लाइफ के लिए अपन ने जो कंडक्शन के लिए यूज किया, दैट इज कॉपर मटेरियल। व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द metals? All these electrons available in valence band when there is a little forbidden energy gap, remember that. That means what we imagine here, valence band and conduction band just overlapping to each other, and therefore overlapping होने के कारण whatever number of the valence band is present, whatever number of the electron present in the valence band, all these electrons get available into the conduction band. Because forbidden energy gap जिसको अपन ने बोला है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी क्या है? इट इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड। जैसे अपन ने बोला है ना, वैलेंस बैंड क्यों बोले अपन ने? बैंड स्ट्रक्चर के वहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है ना। बैंड किसको बोलते हैं अपन? पुंगा वाला, ढोलकी वाला, ये सभी प्रकार के एक जगह पे फॉर्म होता है, उसको अपन ने बोला है बैंड। तो उसी प्रकार से नंबर ऑफ एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल वहाँ पे एकत्रित किया अपन ने, दैट एनर्जी स्ट्रक्चर को अपन ने बोला है वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन उसी बैंड के अंदर में। तो वैलेंस बैंड की सबसे टॉप की जो लेयर रहेंगी, एनर्जी लेवल रहेंगी, दैट एनर्जी लेवल को अपन बोलते हैं फर्मी एनर्जी। और फर्मी एनर्जी लेवल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। फर्मी एनर्जी लेवल को जब तक क्रॉस करके वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के लिए एप्लीकेबल होता नहीं, तब तक मटेरियल वहाँ पे कंडक्शन करेंगे। मेटल के अंदर में अपन ने पिक्चर देखा है यहाँ पे कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बोथ आर सेपरेटेड on the basis of Fermi energy level, but that Fermi energy level or forbidden energy gap is very very small, somewhat it is negligible value. That means both the energy band, valence band and conduction band overlapping to each other, and under this case whatever the number of electron get available into the valence band, same number of electron get available into the conduction band, and this much amount of the electron get available into the conduction band, the conductivity of the material will be good, and that's why we observe that metal is heavily conduct. उसके पीछे का रीजन ये है बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप लिटिल रहने के कारण, निग्लिजिबल रहने के कारण, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अवेलेबल रहेंगे वो सभी प्रकार के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, अवेलेबल रहने के कारण वहां पे अपने को कंडक्शन अच्छा मिलेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि मेटल अपने को अच्छी कंडक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई मेटल को अपन चूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और सेकंड स्ट्रक्चर है बेटा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे एक आध क्वेश्चन सीटी एग्जामिनेशन पे कॉन्सेप्ट के आधार पे सेट हो सकता है। तो हाउ बैंड स्ट्रक्चर कैटेगराइज सेमीकंडक्टर, मेटल एंड इंसुलेटर, हाउ द बैंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज देयर। अभी यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर अपने कॉन्सेप्ट लिया, जैसे कैसे अपने को सेमीकंडक्टर पता चला। सेमीकंडक्टर पता चलने के पीछे रीजन ये है कि दैट इज बैंड स्ट्रक्चर। सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है, उसी प्रकार से बैंड स्ट्रक्चर है। आपको कोई भी मटेरियल ले ले, वुड इज आल्सो मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन, प्लास्टिक आल्सो मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन, metal is also made up by electron, everything is made up by electron. If there is a somewhat atoms, that atom is nothing but having the electron.
लेकिन कुछ मटेरियल वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, लेकिन वुड प्लास्टिक जैसे मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी देना चाहिए, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस इन बिटवीन दिस मटेरियल? सम मटेरियल गिव्स द कंडक्टिविटी, सम मटेरियल डजंट गिव द कंडक्टिविटी। वहां से एक नया मटेरियल अपने ध्यान में आया, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे अपने हाथ में लगे कि वो कुछ कंडीशन पे वहां पे कंडक्टिविटी दे रहे, कुछ कंडीशन पे कंडक्टिविटी नहीं दे रहे। और ये मटेरियल ध्यान में आने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में नया एक चेंजेस आया, क्योंकि इस प्रकार के मटेरियल की कंडक्टिविटी को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मेटल में जो कंडक्टिविटी उसको अपन बदल नहीं सकते, तो कांस्टेंट कंडक्टिविटी रहती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू। लेकिन डेली अप्लायंसेस चलाने के लिए अपने को ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, ऐसे केस में अपने को सेमीकंडक्टर मटेरियल ध्यान में। सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखा जाए तो इनिशियली वैलेंस बैंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन रहते। Again, valence band and conduction band is divided on the basis of energy level, and that energy level is called forbidden energy gap. Forbidden energy gap यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों को डिवाइड किया। फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू अपन ने लिटिल बिट वहां पे कंसिडर किया है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंडीशन यही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का जम नहीं करेगा कंडक्शन बैंड के अंदर में, क्योंकि कंडीशंस कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ना कहाँ हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट यानी अपर मोस्ट एनर्जी लेवल में होना चाहिए। अपर मोस्ट एनर्जी लेवल में जब तक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता तब तक वो कंडक्शन के लिए रेडी है। अब इनिशियली बाय द बोल्ट्जमैन लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन गेट अवेलेबल इनटू द वैलेंस बैंड। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन हैव टू जंप टू द कंडक्शन बैंड सो दैट वी गेट द कंडक्टिविटी। क्रिस्टल के अंदर में अपन ने देखा होगा कुछ मटेरियल के अंदर में एट रूम टेम्परेचर ऑल दिस इलेक्ट्रॉन गेट अवेलेबल इनटू द वैलेंस बैंड। बट इफ एनहांस द टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू द 30 डिग्री या और उससे ज्यादा अपन ने टेम्परेचर किया है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं। And whenever that electron gets started available into the conduction band, then we say that material start to conduct. तो यहाँ पे उसी प्रकार से स्ट्रक्चर हुआ, and that's why it is called a semiconductor. Semiconductor is a very simple concept. At particular condition, it behave as an insulator, that is no conductivity at all. And at particular condition, it start to conduct. And दोनों प्रकार के गुण वहाँ पे अपने को semiconductor material में दिखाई दे रहे। कुछ कंडीशन पे वो कंडक्टिविटी देता है इसलिए अपन उसको कंडक्टर बोलते हैं, और कुछ कंडीशन पे वो कंडक्टिविटी देता ही नहीं इसलिए उसको अपन इंसुलेटर बोलते हैं। और दोनों के बीच में इनकी कंडक्टिविटी, इस प्रकार के मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब इंसुलेटर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने को मिलेंगी इस प्रकार के मटेरियल में, और कंडक्टर से लेस कंडक्टिविटी मिलेंगी। अब कौन से कंडीशन पे वो इंसुलेटर बिहेव कर रहा है? 0 डिग्री टेम्परेचर अपन ने दिया है नहीं, उस कंडीशन में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर में अवेलेबल है। लेकिन अपनी कंडीशन है कि उन्होंने फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या करना चाहिए? क्रॉस करना चाहिए। जैसे ही मैं अपन टेम्परेचर दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पे बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला दिया है, हाउ दैट इलेक्ट्रॉन गेट जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अपन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे वहाँ पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या हो रहे हैं? अवेलेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे वैसे वैसे वो मटेरियल कंडक्टिविटी देना स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल, दोज मटेरियल, सबसे पहला सेमीकंडक्टर अपने हाथ में लगा दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम। वहाँ से नया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले अपने पास अपन मेटल को कंडक्टिविटी मानते थे। इंसुलेटर जो कंडक्टिविटी नहीं देता था अपने को, उसके बीच में कोई भी मटेरियल नहीं था। इसके कारण अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स था उसने नया चेंजेस वहाँ पे लाया जब सेमीकंडक्टर मटेरियल उनके हाथ में। उसी प्रकार से एक इंसुलेटर मटेरियल है। अब उन्हें बोला है कि सभी प्रकार के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स रहती है, अवेलेबल रहते हैं। एवरी मटेरियल, एवरी मेटल इज मेड अप बाय द इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, तो सभी प्रकार के मटेरियल ने कंडक्शन करना चाहिए। लेकिन वाई दैट इंसुलेटर मटेरियल, जिसको अपन बोलते हैं वुड, प्लास्टिक, कंडक्टिविटी नहीं दे रहे अपने को, और बाकी मटेरियल जो मेटल है वो कंडक्टिविटी दे रहे थे। सभी पिक्चर को अपन ने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ न कहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना चाहिए टू आफ्टर क्रॉसिंग द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड द एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल। सो इन टर्म्स ऑफ हीट, हीट क्या है? वो एनर्जी दे रहे हैं अपन। एनर्जी देने के पीछे का मकसद ये कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ न कहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना चाहिए।
और इसलिए अपन हीट एनर्जी सप्लाई करते हो। अपन ने देखा है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जैसे अपन ने हीट एनर्जी सप्लाइड किया तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंपिंग करके एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए कंडक्शन बैंड में गए, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद अपन ने बोला कि वो मटेरियल कंडक्टिविटी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन इंसुलेटर मटेरियल में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी वास्ट, दैट इज मोर देन 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मैंने दिखा है प्रेजेंटेशन में, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे प्रेजेंटेशन की। फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, वेरी वास्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इतनी वास्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप रहने के कारण व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सटर्नली अपन सप्लाई कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन तो भी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे। फिर भी अपन ने हीट एनर्जी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की तो एक समय पे सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बट नो इलेक्ट्रॉन गेट अवेलेबल इनटू द कंडक्शन बैंड, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दैट पर्टिकुलर मटेरियल डजंट कंडक्ट। है क्या नहीं, एखादे लड़के की इच्छा शक्ति नहीं रहती काम करने की, अपन देते ही जा रहे डोजेस उसको, ये ट्यूशन लगाएंगे, इस कॉलेज में भेजेंगे, उस कॉलेज में, बट नो कैपेसिटी टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और ज्यादा ही फोर्स लगाने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, एक समय पे वो सिस्टम गेट कोलैप्स, ना लड़का वो एजुकेशन के काम के रहेगा और ना ही दूसरे काम के रहेगा। तो सेम थिंग इज हैपन हियर, इंसुलेटर डजंट कंडक्ट बेसिक रीजन बिहाइंड why the insulator material doesn't conduct, that is plastic type material, wood type material. Only one thing is responsible, that is the band structure. On the basis of that band structure we categorize these 3 important material, that is metal, semiconductor and इंसुलेटर। और इस बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे एक नया सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर अपने हाथ में लगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल के आइडिया दुनिया को पता चली, और सेमीकंडक्टर मटेरियल के आइडिया जैसे दुनिया के सामने आए, रिसर्चर के सामने आए, उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि किस प्रकार से इस मटेरियल को अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को सेमीकंडक्टर नेचर जिस मटेरियल में पता चला, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। It is work as a semiconductor. Nowadays, number of the material is working as gives the semiconducting material. Somewhat polymer material also gives the semiconducting behavior. Semiconducting behavior यानी होता क्या है, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मटेरियल कंडक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, और जब अपन टेम्परेचर को घटाते हैं तो मटेरियल यूज एज अ इंसुलेटर। अभी बहुत सारे पॉलीएनालिन हो गया, पॉलीमर्स हो गया, जिसको डोपिंग करने के बाद उनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर जितनी वो कंडक्टिविटी दे रहे। अभी तक तो सभी पॉलीमर को अपन ने फेंक दिया था एज इंसुलेटर करके, बट नाउअडेज बाय द नैनो मटेरियल सिंथेसिस मेथड के आधार पे वो भी मटेरियल कुछ मात्रा में कंडक्टिविटी अपने को देते हुए नजर आए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को अपन ने 2 पार्ट में बेटा डिवाइड किया है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। काफी सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे और कुछ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आधार पे या लॉजिकल डिवाइस के आधार पे सीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इजीली आप इस सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर में तीनों क्वेश्चन का आराम से सॉल्व करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन गेट इजीली नंबर्स इन सीईटी एग्जामिनेशन और जे एग्जामिनेशन। The semiconductor is categorized into 2 parts, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is nothing but original semiconductor, it is a pure form of semiconductor. No additional doping of the material, no additional doping of any holes or electron there. That particular material is called intrinsic semiconductor. है कि नहीं, जब बोलते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक रहता है बच्चे के अंदर में, प्योर सोल रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब ऐसा आगे बढ़ेगा तो सोल क्या हो जाएगा, इमैच्योर हो जाएगा, वहाँ पे डोपिंग होते रहता है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा होने चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ऑल दिस मटेरियल आर डोपिंग। इनिशियल देखो ना, हाईएस्ट एनर्जी रहती है छोटे बच्चे के अंदर में, दिन भर खेलने के बावजूद भी वो थकता नहीं, व्हाट दैट, इट इज द प्योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर। उसी प्रकार से प्योर फॉर्म में किसी भी प्रकार के एडिशनल डोपिंग, डोपिंग का मतलब है इंप्योरिटीज को ऐड करना, अपने हिसाब से कोई चीज पाना है तो अपन क्या करते हैं, उसमें डोप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर मिला वो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, उसके बाद अपने पास था सिलिकॉन मटेरियल आल्सो गिव द सेमीकंडक्टिंग नेचर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है क्या है, इसको अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी ओनली हीट एनर्जी के आधार पे डिपेंड है, एंड दैट्स व्हाई वेरी लिटिल कंडक्टिविटी व्हिच वी ऑब्जर्व इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट फॉर अ डेली अप्लायंसेस रन करना है अपने को, फ्रिज चलाना है, बाकी फैन चलाना है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चाहिए, मटेरियल की ज्यादा चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग इज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लेस होने के कारण
इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर फॉर्म में जो जर्मेनियम मटेरियल अपने को दे रहा है कंडक्टिविटी, सिलिकॉन मटेरियल अपने को कंडक्टिविटी दे रहा है, इन सभी मटेरियल के अंदर में अपन ने एडिशनल डोपिंग करना स्टार्ट। और जब अपन एडिशनल डोपिंग वहां पे करते हैं उस समय सेमीकंडक्टर का एक दूसरा टाइप अपने हाथ में आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब अपन ओरिजिनल सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ एडिशनल मेटल मटेरियल की आयंस की वहां पे क्या करते हैं, डोप करते हैं, ऐड करते हैं, देन वो टाइप हो जाता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब किस प्रकार के मटेरियल की डोपिंग अपन ने की है ओरिजिनल सिलिकॉन मटेरियल में या ओरिजिनल जर्मेनियम मटेरियल में, उस आधार पे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर अपन ने दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे सेमीकंडक्टर थ्योरी को अपन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सेमीकंडक्टर थ्योरी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपने को पता चल रहा है कि कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन सेमीकंडक्टर मटेरियल की कितनी आवश्यकता थी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में सेमीकंडक्टर मटेरियल ध्यान में आने के बाद नया चेंजेस आया। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नो प्योरिटी एट ऑल, बिकॉज अपन ने क्या किया, एडिशनल मटेरियल के एडिशनल आयंस की वहां पे डोप किया। अब एन टाइप ऑफ डोपिंग के आधार पे मैंने बोला हूं कि एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी के आधार पे भी सीईटी एग्जाम में एक आध बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आगे अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करके देखेंगे कि किस प्रकार से नए नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपन ने वहां पे डिजाइन किया इलेक्ट्रॉनिक्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन देख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट, अपन ने देखा है कि जर्मेनियम स्ट्रक्चर अगर लिया जाए या सिलिकॉन स्ट्रक्चर अगर लिया जाए और सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन संख्या, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर में, है कि नहीं। फर्स्ट अपन ने देखा है कि एटम्स के अंदर में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रहते हैं एंड दैट एनर्जी लेवल नथिंग बट इट इज कॉल्ड ऑर्बिट, है कि इट इज टोटली इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और ऑर्बिट के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस क्षमता के आधार पर डिजाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिस्टिंग्विश द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल इन द केमिस्ट्री। तो उसी प्रकार से जर्मेनियम के अंदर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब उन्हें बोला है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। तो उसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन अगर एडिशनली ऐसे मटेरियल को अपन डोप करके कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर में इट फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और मटेरियल की स्टेबिलिटी आ सकती है कि नहीं। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में, तो अपन बोलता है कि मटेरियल गेट देयर स्टेबिलिटी। उसी प्रकार से यहाँ पे अपने को क्या करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर डिजाइन करना था, इसलिए अपन ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ऐसे एलिमेंट की डोपिंग की कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मटेरियल आर्सेनिक होगा, बिस्मथ होगा, ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल की अपन ने डोपिंग किया। डोपिंग बिल्कुल ध्यान में रखना है। फॉर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल वी डोप द पर्टिकुलर मटेरियल विच बिलोंग्स टू द 5th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में 5th ग्रुप के अंदर में जो एलिमेंट रहते हैं, 5th ग्रुप में आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की डिजाइनिंग अपन ने उसी आधार पे की है, जिस ग्रुप के अंदर में, जिस टेबल के अंदर में वो एलिमेंट रहता है उसके आधार पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता चलता है। 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दैट 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को, जैसे बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक, उसको अपन ने क्या किया, डोप किया ओरिजिनल सिलिकॉन के अंदर में या ओरिजिनल जर्मेनियम के अंदर में। तो आप सभी को पता है बेटा कि 5 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होकर वहां पे क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। लेकिन एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर में कि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वहां पे, वो एडिशनल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे तैयार होगा, क्योंकि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। 4 ने 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, लेकिन 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन वहां पे दिखाई दे रहा है आर्सेनिक के अंदर। तो इस प्रकार से 1 आर्सेनिक एटम गेट कंबाइंड विद द जर्मेनियम मेटल
then we get an excess of single electron is there. One bismuth atom get combined with the germanium, one excess of electron is there. ऐसे सिस्टम के अंदर में नंबर ऑफ बिस्मुथ एटम को जर्मेनियम के साथ अपन रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां पे बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कंडक्शन हो रहा है बाय द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, इसका मतलब होल्स वहां पे है ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपन ने फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को प्योर सिलिकॉन के अंदर में डोप करने के कारण इलेक्ट्रॉन का नंबर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट वहां पे बढ़ते जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। मेजोरिटी किसकी रहेंगी? जैसे अपन बोलते हैं ना, फंक्शनिंग गवर्नमेंट का या सरकार कौन चलाता है, तो मेजोरिटी में जो है वही गवर्नमेंट को चलाए, इसका मतलब माइनॉरिटी में जो पार्टी है उसका कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शनिंग करना है तो माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटी दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टिंग के अंदर में, मटेरियल के अंदर में होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन से कंडक्शन मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी किसकी है। तो यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कंडक्शन इज डन बाय दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कंडक्शन सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट के अंदर में हो रहा है। अपन ने देखा फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी लेस होती जा रही है, जैसे अपन ने मटेरियल को वहां पे डोप किया, इनिशियली फॉरबिडन एनर्जी गैप वास्ट थी, मटेरियल डोपिंग करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे बढ़ गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस होगी, सो दैट इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, और अपना कहना वही है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में रहे, उतना बेहतरीन कंडक्शन अपने को वहां पे मिलेगा। और उस प्रकार से डोपिंग करने के कारण जो इनिशियल प्योर सेमीकंडक्टर में जो अपने को कंडक्टिविटी मिल रही है वो काफी लिटिल कंडक्टिविटी थी। डेली अप्लायंसेस रन करने के लिए कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ाना ही अपना मेन मकसद था। डोपिंग से कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी बेहतरीन कंडक्टिविटी अपने को मिलेंगी। एंड वी ऑब्जर्व दैट इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट इज एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग गुड कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू द प्योर सिलिकॉन मटेरियल। एंड इसलिए अपने को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल को अपन ने स्टडी करना स्टार्ट किया, एंड प्योर सिलिकॉन के अंदर में अपन ने इम्प्योरिटी को डोप करना स्टार्ट किया। यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी, डोनर लेवल वहां पे बढ़ रहा है। अपन इसी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे और इम्प्योरिटी और डोपिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अपन ने बोला है कि प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, एंड देन डोपिंग मटेरियल के आधार पे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिक। बट व्हाट काइंड ऑफ डोपिंग मटेरियल विल टेक प्लेस इन द प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल? ऑन द बेसिस ऑफ दैट extrinsic semiconductor material again divide into two type, that is n type and p type. n type material में अपन ने फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट का डोप किया था, अब अपन देखते हैं हाउ दैट p type semiconductor which we get। फिर से अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है, दैट इज सिलिकॉन के अंदर में, जर्मेनियम के अंदर में, वैलेंस शेल के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी लाना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होगा और मटेरियल को स्टेबिलिटी मिलेंगी। लेकिन अभी अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल डिजाइन करना है, तो ऐसे ही एलिमेंट को अपन डोप करेंगे जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन, दैट इंडियम हो गया, फॉस्फोरस टाइप मटेरियल हो गए, जो छोटे मटेरियल है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ वो क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन करेंगे, अपन डोप करेंगे उसको। डोपिंग करने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएंगी? शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद फिर से क्या होगा? वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद वहां पे अपने को दिखाई देगा कि एक इलेक्ट्रॉन 3 इंडियम के इलेक्ट्रॉन 3 जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होके प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बेटा। बट 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी विच वी ऑब्जर्व, क्योंकि जर्मेनियम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इंडियम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वहां पे तैयार हो गई।
और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का अर्थ होता है क्रिएशन ऑफ होल्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं वहाँ पे होल तैयार होंगे ना, और होल्स को तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इस प्रकार से वन इंडियन एटम गेट कंबाइंड टू द जर्मेनियम एटम, देन दे गेट the deficiency of single electron, that is creation of the hole in the system. Number of indium atom get combined to the germanium atom. In this way majority charge carriers of holes is taken, concentration of holes is maximum, and therefore अपन बोलते हैं कि जिस प्रकार के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, उस टाइप के मटेरियल को अपन ने बोला है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में देखिए किस प्रकार से कंडक्टिविटी वहां पे दे रही है। यहाँ पे देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, फिर से फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी वेरी। यहाँ पे अपन ने क्या क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्रिएशन ऑफ होल, होल की संख्या वैलेंस बैंड के अंदर में क्या है बढ़ती जा रही, इसलिए एनर्जी लेवल जो अपन ने बताया एडिशनल एनर्जी लेवल कहाँ पे बताया, अपर मोस्ट टू द वैलेंस बैंड। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसके कारण अपन ने क्या है कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप को कम किया था। अभी वैलेंस बैंड के कारण एनर्जी गैप को क्या हो रहा है वहां पे कम हो रही है, बिकॉज होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और गैप कम होने के कारण इजीली वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट टू द कंडक्शन बैंड, और इस प्रकार से वहां पे अपने को कंडक्शन मिलेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बढ़ रहा है। फिर से अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण ही अपने को क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होते हुए नजर आता है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज के रहने के कारण अपन ने इस टाइप ऑफ मटेरियल को क्या बोला है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड एन टाइप, एंड बोथ सेमीकंडक्टर मटेरियल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिसिटी। एंड इसी के कारण अपने को कंडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आई, और जैसे ही अपने हाथ में पता लगा कि कंडक्टिविटी अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल में धीरे धीरे बढ़ रही है डोपिंग मटेरियल को ऐड करने के कारण, एंड इसका मतलब एडिशनल मटेरियल को अपन डोप करते, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज वहां पे क्या होता है, वेरी होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज अगर वेरी हो रहा है इसका मतलब समवॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वहां पे क्या आता है, चेंजेस आता है। और अपना मेन मकसद वही था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में बढ़े, ताकि डेली अप्लायंसेस के लिए अपन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को यूज में ला सकते हैं। हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर मटेरियल, दैट वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। इस प्रकार से कंडक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन ड्यू टू द होल्स यहाँ पे लिया अपन ने, एंड दैट टोटल कंडक्शन इज नथिंग बट दैट कंडक्शन डन इन द पर्टिकुलर मटेरियल, दैट इज नथिंग बट आई। I calculate करना है conduction in the particular material, that may be a p type semiconducting material, that or that may be a from the n type of material, but that is done by this electron and holes। तो यहाँ सबसे पहले अपन ने लिया इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई ए, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे, वो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अपन ने कंसिडर किया। उसी प्रकार से होल का कंसंट्रेशन अगर अपने को निकालना है, होल से जो करंट पास हो रहा है वो अपने को निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ होल्स वहां पे प्रेजेंट है मटेरियल के अंदर में, देन चार्ज ऑन द होल, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन द होल बोथ आर सेम, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होल्स वहां पे क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसके आधार पे अपन करंट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू द होल्स अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के आधार पे अपन ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखा बेटा, हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूजिंग द current passing through the concentration of holes and concentration of electron present in the particular material। अब सिंपल ओम्स लॉ अपन ने अप्लाई किया है, V अपॉन आर, आई अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, वैल्यू पुटअप किया अपन ने, ओम्स लॉ के आधार पे अपन ने कैलकुलेट किया कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद द डेंसिटी, और यहाँ से अपन ने इक्वेशन निकाला है the mobility of the charge carrier through the particular material, and that mobility is nothing but inversely proportional to the resistivity। आप लोगों ने देखा होगा कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। कंडक्टिविटी यानी क्या होता है, कंडक्टिविटी के अपोजिट प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और इस आधार पे पर्टिकुलर मटेरियल की अपन ने रेजिस्टिविटी निकालने के बाद क्या निकाला बेटा, कंडक्टिविटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कंडक्टिविटी इन द पर्टिकुलर मटेरियल इज डिपेंड अपॉन द हाउ मच द चार्ज गेट मूव इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप हुआ है, अपन ने
इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में पोटेंशियल अप्लाइड किया है बेटा। वहाँ पे जैसे ही अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उस आधार पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के आधार पे फील्ड तैयार होती है और फील्ड से इलेक्ट्रॉन चार्ज वहाँ पे क्या होते हैं, मोबिलाइज होना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ना साइक्लोन्स फॉर्मेशन होता है समर डेज के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल घूमने वाली हवा आती है कभी कभी अपनी एरिया में। हाउ दिस क्रिएटेड, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस तैयार होता है। प्रेशर डिफरेंस तैयार होने के कारण हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या आती है, हवा ब्लो होती है, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ। एंड व्हाई दिस हैपन, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां पे तैयार हुई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के कारण, तैयार होने के कारण वहां पे अपने को कंडक्शन भी आया, चार्ज क्या हो गए वहां पे, मोबिलाइज हो गए पर यूनिट एरिया के आधार पे। और चार्ज जब मोबिलाइज होते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द पर्टिकुलर मटेरियल। The electrical current जो पास हो रहा है particular material, that will depend upon the number of holes is present and number of electron is present, and how much the hole get mobilized and how get the number of electron get mobilized, उसके आधार पे अपन रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में क्या है बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि हाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी which we get in p type semiconductor and n type semiconductor, and we observe that the concentration of charge is enhanced due to the doping inside the material, and concentration of charge अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कहाँ ना कहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि प्योर सिलिकॉन मटेरियल में अपने को कंडक्टिविटी उस प्रकार से नहीं मिल रही थी जितनी अपने को चाहिए थी। अप्लायंसेस चलाना था तो कंडक्टिविटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज भी क्या होना चाहिए, वहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। मैथमेटिकली वी प्रूव दैट हाउ द कंडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मटेरियल, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द कांसेप्ट ऑफ डोपिंग। of that doping, new electronics devices, two terminal electronics devices forms first time is that is called p-n junction diode. Remember dear student, आपको बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। How we design the p-n junction diode? Initially अपने को सेमीकंडक्टर पता चला, सेमीकंडक्टर को अपन ने कैटेगराइज किया दो पार्ट में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से डिवाइड कर दिया अपन ने दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके हुए सिंथेसिस करके अपन ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड p-n junction diode। p-n junction diode का काफी बेहतरीन इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। p-n junction diode डिजाइन होने के बाद अपने को रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया बेटा। p-n junction diode के आधार पे मॉड्यूलेटिंग सर्किट अपन ने तैयार किया। p-n junction diode के आधार पे अपने को नंबर ऑफ डायोड्स और पता चले किस प्रकार से जीनर डायोड अपन डिजाइन कर सकते, किस प्रकार से सोलर डायोड अपन डिजाइन कर सकते, किस प्रकार से एलईडी डायोड अपने हाथ में लगा। तो ये सभी प्रकार के डायोड के कैरेक्टरिस्टिक समवॉट स्लाइटली चेंज होते जाए, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। व्हेन वी गेट p type and n type of semiconductor, that is majority of holes and majority of minor charge carrier, that is electron, उसी आधार पे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को स्टार्ट करना है। अब p-n junction diode अपन ने बिल्कुल ध्यान रखना है, मेन फंक्शन ऑफ दिस p-n junction diode, it work only in a forward bias, remember that। फॉरवर्ड बायसिंग मोड में सिर्फ p-n junction diode अपने को कंडक्शन देता है, रिवर्स बायसिंग मोड में कंडक्शन नहीं करता, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आप सबको। अब व्हाट एग्जैक्टली फॉरवर्ड बायस, हाउ वी कनेक्ट द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड। तो फॉरवर्ड बायस में आपने देखा होगा p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को अपन ने कंबाइन किया। अब कंबाइन करते समय वहां पे एक डिफ्लेक्शन लेयर तैयार हुई। डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर में जैसे अपन बोलते हैं ना, बीच की जो वॉल रहती है, कॉमन वॉल, जिसके आधार पे अपन दो रूम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एक उधर वाली रूम और इधर वाली। अब उधर वाले इंसान को इधर वाले रूम में अगर आना है तो इसका मतलब कहाँ ना कहाँ उस वॉल को क्या करना पड़ेगा, अपने को तोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को अपने जोड़ा है, कंबाइन किया है। तो वहाँ पे दोनों को कंबाइन करते समय एक डिफ्लेक्शन लेयर तैयार होती है वहाँ पे, और डिफ्लेक्शन लेयर जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ तब तक अपने को कंडक्शन मिलता नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ से मिल रही है अपने को, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दोनों चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। जब तक इलेक्ट्रॉन और होल सर्किट के अंदर में मूव नहीं होता, मोशन में नहीं आता, मोबिलाइज नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार का कंडक्टिविटी अपने को नहीं मिलेगा एलिमेंट के अंदर में। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग मोड में अगर डायोड को अपन फॉरवर्ड गैस में बैटरी का p टर्मिनल अपन डायोड के p टर्मिनल के साथ कंबाइन करिए,
निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अपन ने सर्किट के अंदर में आपको क्लियरली दिखाई देगा, एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल पी is connected to the positive terminal of battery, and then start to give the potential difference using the circuit. जैसे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस को ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन होती है बराबर डिफ्लेक्शन लेयर से ज्यादा ऊपर जैसे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अपन देते हैं, जैसे अपन डिफ्लेक्शन लेयर को जब अपन बोलते हैं कटिंग वोल्टेज, इट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द डिफ्लेक्शन लेयर. डिफ्लेक्शन लेयर की बाउंड्री जब तक क्रॉस होंगी नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होंगे. डिफ्लेक्शन लेयर को क्रॉस करने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल की आवश्यकता होगी. आप लोगों ने अगर ग्राफ निकाला होगा, प्लॉट निकाला होगा 12th स्टैंडर्ड में, पीएन जंक्शन डायोड का अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो आपको क्लियरली दिखाया होगा प्लॉट्स कि वो प्लॉट 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो प्लॉट गेट स्टार्टेड फ्रॉम 0.6 वोल्ट. 0.6 वोल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? 0.6 वोल्टेज इंडिकेट करता है कि इट इज द कटिंग वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायोड. जब तक मिनिमम पोटेंशियल अपन देंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, डिफ्लेक्शन लेयर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, और डिफ्लेक्शन लेयर जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन नहीं होता और तब तक अपने को कंडक्शन नहीं होता. तब ये क्रॉस करने के लिए डिफ्लेक्शन लेयर को वो मिनिमम वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो अपन सर्किट से देते हैं, एंड दैट मिनिमम पोटेंशियल फॉर द सिलिकॉन डायोड इज 0.6 वोल्ट. एंड आफ्टर दैट द प्लॉट गेट स्टार्टेड, करंट गेट कंडक्टेड. करंट की वैल्यू तभी मिलेंगे जब वो पोटेंशियल अपना 0.6 वोल्टेज के आगे बढ़ेगा. अगर यही कटिंग वोल्टेज की वैल्यू अपन जर्मेनियम डायोड के अंदर में देखते हैं तो जर्मेनियम डायोड में 0.3 वोल्ट अपने को कटिंग वोल्टेज इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू क्रॉस द डिफ्लेक्शन लेयर सो दैट इलेक्ट्रॉन एंड होल गेट रिकम्बाइंड टू ईच अदर. इसी आधार पर अपन फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. फॉरवर्ड बायसिंग वेरी सिंपल इज दैट when the p type is connected to the positive terminal of battery, n type is connected to the negative terminal of battery, we on the potential value get recessed from the 0.6 volt, then electron and hole get combined to each other and conduction gets started. अब इसी आधार पे अगर डायोड को अपनी रिवर्स बायसिंग मोड में दिया तो डिफ्लेक्शन लेयर सडनली वर्स्ट होती हुई नजर आ रहा है क्या नहीं? बिल्कुल ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट. डिफ्लेक्शन लेयर और बैरियर पोटेंशियल गेट मैक्सिमाइज in the reverse bias, and that's what we say that in reverse bias diode doesn't conduct. डायोड का फंक्शनिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा प्लॉट के आधार पे तो आप लोगों ने देखा होगा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड. इन फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक डायोड ओनली कंडक्ट, इन रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक डायोड डजंट कंडक्ट. इसके पीछे रीजन यही है कि डिफ्लेक्शन लेयर वर्स्ट हो जाता है जैसे अपन डायोड को रिवर्स बायसिंग मोड में लेते हैं, और इसके कारण जब अपने पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से तो भी वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करता, और बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे वेरी वास्ट डिफ्लेक्शन लेयर रहने के कारण, और इलेक्ट्रॉन होल अगर रिकम्बाइन नहीं होने के कारण देखिए कितना ज्यादा वहां पे अपने को बैरियर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है. एंड सो दैट व्हाटएवर द नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, no deflection layer get processed by this electron and holes, and that means the electron and hole both are not combined to each other, and that's why we does not get the conduction. So more minimum value of the conduction which we observe in a reverse bias plot in semiconductor device or in diode usually, that is only a abnormal behavior of the diode, but it is not in normal mode. Diode doesn't conduct in reverse biasing mode, and that's why function लिखते समय अपन बोलते हैं डायोड का कि डायोड only conduct in फॉरवर्ड बायस, और इसी फंक्शन के आधार पे डायोड को अपन ने नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या किया बेटा यूज में. अब देखते हैं अपन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मैंने प्लॉट के आधार पे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया. वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड अपन बोलते हैं करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड. इस प्रकार से डायोड्स को अपन सर्किटरी में लेते हैं, एंड देन वी ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस ऑन होने के बाद धीरे धीरे अपने को कंडक्शन वैल्यू मिलती है, लेकिन अपन ने बोला है कि डायोड जब तक लेयर को क्रॉस नहीं करेंगे, डिफ्लेक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि दिस प्लॉट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू दैट इज 0, बट इट गेट्स स्टार्टेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम दिस मिनिमम वैल्यू, एंड दैट मिनिमम पोटेंशियल टेकन बाय दिस डायोड इज कॉल्ड कटिंग वोल्टेज. एंड फॉर द सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ द कटिंग वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट. फॉर द जर्मेनियम डायोड सेम वैल्यू इज 0.3 वोल्ट. इसलिए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल दे रहे हैं अपन को, लेकिन वो मिनिमम पोटेंशियल के बाद बढ़ रही है, और मिनिमम पोटेंशियल को जो अपन ने बोला है की पोटेंशियल और नी पोटेंशियल. उसके बाद अपन देखते हैं कि रिवर्स बायस मोड में अगर डायोड को अगर अपन कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए
फॉरवर्ड बायसिंग मोड में अपन ने डायोड को लिया है, लेकिन डायोड टर्मिनल अगर अपन चेंज कर रहे हैं रिवर्स बायस मोड में, तो रिवर्स बायस मोड में डायोड का प्लॉट किस प्रकार से वीआई कैरेक्टरिस्टिक वेरी होता है। तो रिवर्स बायस मोड में अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल वैल्यू अपन बोल रहे हैं, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डिफ्लेक्शन लेयर को ज्यादा पोटेंशियल देने के बाद समवॉट वो क्रॉस करेगा और मिनिमम इलेक्ट्रॉन लीक होके कहाँ ना कहाँ रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने के बाद निग्लिजिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द डायोड, उसके आधार पे समवॉट करंट की वैल्यू वहाँ पे अपने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में अपन स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। काफी सिंपल फार्मूला अपन ने यूज किया है स्टैटिक रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायोड के, दैट इज रेजिस्टेंस आर इज नथिंग बट बाय सिंपल ओम्स लॉ V अपॉन I। उसके आधार पे अपन स्टैटिक रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद डायनामिक रेजिस्टेंस अगर निकालना है, इसका मतलब 2 पॉइंट लेंगे अपन प्लॉट के ऊपर के, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू होगा, दोनों पॉइंट का करंट वैल्यू होगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज को अपन ने डायनामिक वैल्यू बोला है। तो इस प्रकार से डायोड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग डायोड को अपन ने स्टडी किया। एक और डायोड अपने पास है दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड। उसके फंक्शन और नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड अभी अपन स्टडी कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। इसका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखा, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखा। फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन हो रहा है, रिवर्स बायस में निग्लिजिबल वैल्यू ऑफ कंडक्शन अपने को दिखाई दे रहा है। इसके आधार पे एक नया डायोड अपने को मिलता है जिसका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक समवॉट चेंजेस होता है, दैट डायोड इज कॉल्ड जीनर डायोड। उसी प्रकार से डायोड में एनर्जी लिंक एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है। उस एनर्जी वैल्यूज को अगर अपन ट्रैप करते हैं विजिबल रीजन के अंदर में, तो एक नया डायोड अपने हाथ में आता है दैट इज कॉल्ड एलईडी डायोड, जिसमें अलग अलग प्रकार से अपने को एलईडी में वहाँ पे लाइट की वेवलेंथ नजर आती है डिफरेंट कलर्स के अंदर में। उसी प्रकार से सोलर एनर्जी के आधार पे एक्साइटेशन एनर्जी को अपन कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं अपन सोलर डायोड। दीज आर द टनलिंग डायोड, टनलिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी कर, दीज आर द नंबर ऑफ डायोड व्हिच वी आर गोइंग टू बी कंसीडर और व्हिच वी आर गोइंग टू बी स्टडी इन आवर सिलेबस। एंड वी फाउंड दैट और वी ऑब्जर्व दैट देयर वर समवॉट दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड गेट चेंजेस। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे हाउ दैट डायोड इज वर्क एंड डायोड का मेन एप्लीकेशन पार्ट क्या है। डायोड को अपन ने जैसे अपन ने बताया कि सेमीकंडक्टर थ्योरी से अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर पता चला, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर पता चला, फिर वहां से अपन ने 2 टर्मिनल डिवाइस डायोड को डिजाइन किया। लेकिन इसका फायदा क्या, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस डायोड इन इलेक्ट्रॉनिक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक किस प्रकार से आगे बढ़ते गया। एक सेमीकंडक्टर से सेमीकंडक्टर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक में डायोड का कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में नहीं आता था, डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तो डायोड से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तैयार किया दैट इज रेक्टिफायर, वो अपने को पता नहीं चलता। तो इनिशियल अपन स्टडी करेंगे हाउ दैट डायोड इज वर्किंग एज अ रेक्टिफायर एलिमेंट। रेक्टिफायर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हेन एसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी देन वी रिक्वायर द रेक्टिफायर। मेन फंक्शन ऑफ द जो डेली अप्लायंसेस चलाने के लिए अपने को ट्रांसफार्मर से एसी सिग्नल मिलता है ना, एसी सिग्नल आपको पता है जिसका फिक्स फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज अपने पास जो मिल रहा है इंडिया में। उसके बाद फिक्स वोल्टेज है उसका 230 वोल्ट फॉर द इंडिया। और वो एसी सिग्नल साइन वेव फॉर्म जो अपने को नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड दैट इज कॉल्ड एसी सिग्नल अपन जिसको बोलते हैं, उस एसी सिग्नल को अपने को डीसी में कन्वर्शन होना है। डीसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि डायरेक्ट सिग्नल रहता है, अप्लायंसेस चलाना है अपने को डायरेक्ट सिग्नल की आवश्यकता होती है। वहां से ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल आ रहा है अपने को इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो एसी के फॉर्म में आ रही है। अप्लायंसेस चलाना है अपने को डीसी में, तो कोई तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए ताकि अपन एसी सिग्नल को डीसी में वहां पे क्या करें, कन्वर्ट करें। उसके लिए आवश्यकता थी एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट। मेन पर्पज ऑफ दैट रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट द एसी इंफॉर्मेशन इनटू डीसी फॉर्म। सबसे पहले अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर ध्यान में रखा। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मर से आ रही है वो साइन टर्म में रहती है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे ये रेक्टिफायर सर्किट डिजाइन करते समय एक ही डायोड को आपने यूज किया। जैसी वो हाफ साइकिल इस डायोड से पास ऑन होंगी, अपने देखा है कि डायोड इज ओनली वर्क इन अ फॉरवर्ड बायस ओनली, नॉट इन रिवर्स बायस। वेवफॉर्म क्या अपने को फॉरवर्ड बायसिंग मोड में और रिवर्स बायसिंग मोड में। तो डायोड कौन से बायसिंग मोड में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है उसको, उस समय डायोड क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड करना है। आउटपुट में अपने को साइकिल दिखाई दे रहे हैं, करंट की वैल्यू दिखाई दे रही है। पहले साइकिल जो था एसी सिग्नल इस प्रकार से मिलता है, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान देना है प्रेजेंटेशन की तरफ। एसी इंफॉर्मेशन है,
जैसी ऐसी इंफॉर्मेशन के पॉजिटिव साइकिल को अपन ने डायोड से पास किया, देन दैट डायोड गेट रिस्पॉन्स, दैट रेक्टिफायर सर्किट इज रिस्पॉन्स एंड वी गेट द करंट वैल्यू एट आउटपुट। उसके बाद अपन ने निगेटिव साइकिल को वैरी किया। यहाँ पे निगेटिव साइकिल भी है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। अपन एसी सिग्नल किसको बोलते हैं, साइन वेवफॉर्म किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। वहाँ पे पॉजिटिव साइकिल भी रहती है, नेगेटिव साइकिल को जैसे ही अपने सर्किटरी से पास किया, डायोड से पास किया, आउटपुट नहीं आ रहा है वहाँ पे, जीरो आउटपुट। अपन इसलिए बोल रहे हैं ना डायोड वर्क इन फॉरवर्ड बायस ओनली, नॉट इन रिवर्स बायस। The for positive half cycle diode only responds, for the negative half cycle diode doesn't respond, no output at all, and therefore if you pass the whole cycle AC information to the rectified circuit, then diode only responds for the positive half cycle। इसलिए पॉजिटिव साइकिल अपने को कुछ इंटरवल के बाद दिखाई दे रहा है। एक गई पॉजिटिव, उसने रिस्पॉन्स किया डायोड ने। निगेटिव साइकिल जैसी की डायोड डजंट रिस्पॉन्स, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको। फिर से कुछ टाइम इंटरवल के बाद पॉजिटिव साइकिल की, तो डायोड ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसी सिग्नल दिखाई दे रहे हैं जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन डायोड से या रेक्टिफायर सर्किट से वो जैसी पास होती है, यहाँ पे ओनली अपने को हाफ साइकिल दिखाई रहे। इसका मतलब साइकिल ब्रेक हो गया। तो साइन इंफॉर्मेशन जो अपने को दी रही थी, एसी इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रही थी, जो साइकिल अपने को दिखाई दे, जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज अपने को दिखाई दे थी, वो कन्वर्ट हो गई डायरेक्ट सिग्नल में, नो फ्रीक्वेंसी एट ऑल। तो इस प्रकार से एसी कन्वर्शन डीसी फॉर्म में हो रहा है। देखिए वो प्योर डीसी नहीं है ना, कुछ इंटरवल के बाद अपने को साइकिल दिखाई रही है, पॉजिटिव साइकिल, कुछ इंटरवल के बाद फिर से पॉजिटिव। अपने को डेली अप्लायंसेस चलाना है तो क्या करना है, प्योर डीसी की आवश्यकता थी। और यहाँ पे इंटरवल के बाद साइकिल्स अपने को दिखाई दे रही, कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल के लिए अपने को किसकी आवश्यकता है, एक नए रेक्टिफायर सर्किट की आवश्यकता थी, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड कनेक्ट करने से काम तो हो गया अपने को, एसी इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन डीसी में तो हो रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस साइकिल में ना, कंटिन्यूअस साइकिल में अप्लायंसेस चलाने तो कंटिन्यूअस साइकिल की आवश्यकता है, प्योर डीसी की आवश्यकता है वहाँ पे। इसलिए फिल्टर सर्किट अपने को लगाना है, इंडक्शन जिसको कैपेसिटर अपन बोलते हैं। उसके बाद उस साइकिल को अपन फिल्टरेट करते हैं, फिल्टरेट के बाद डीसी सिग्नल अपने को मिलता है, प्योर डीसी जो अपन डेली अप्लायंस। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर इज वन, जहाँ पे सिंगल डायोड का अपन क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर से अल्टरनेट अपने को डीसी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अपने को रेगुलर डीसी साइकिल चाहिए, उसके लिए अपन ने क्या किया, दो डायोड को वहां पे कनेक्ट किया, एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड भी कनेक्टेड इन द सर्किट, इन फुल वेव रेक्टिफायर में अपन ने दोनों डायोड को कनेक्ट किया। इस प्रकार से डायोड को अपन ने किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दिस डायोड ओनली रिस्पॉन्स, एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल जो दूसरा वाला डायोड है जिसको अपन ने रिवर्स सर्किटरी में यूज किया, इट विल गेट रिस्पॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। इस प्रकार से एसी सिग्नल है जिसमें पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों है। फॉर पॉजिटिव साइकिल के लिए फर्स्ट डायोड विल बी रिस्पॉन्स, और नेगेटिव साइकिल जब जाएंगी कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो दूसरा डायोड वहां पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेगा। अब पॉजिटिव साइकिल गई, फर्स्ट डायोड ने रिस्पॉन्स करना चालू किया, नेगेटिव साइकिल की दूसरे डायोड ने रिस्पॉन्स चालू किया। इस प्रकार से टोटल एसी इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से, तो यहाँ पे पहले हाफ साइकिल के लिए डायोड रिस्पॉन्स कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दिस डायोड रिस्पॉन्स कर रहा है, कंटिन्यूअस डीसी इंफॉर्मेशन आ रही है। पहला जो प्रॉब्लम जा रहा था अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में सिंगल डायोड यूज करने के कारण ओनली डायोड वर्क इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिसके कारण डिसकंटिन्यूअस डीसी इंफॉर्मेशन अपने हाथ में आ रही थी, डिसकंटिन्यूअस आउटपुट अपने हाथ में आ रहा था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जहाँ पे दो डायोड को अपन ने कनेक्ट किया है, दोनों डायोड को कनेक्ट करने के कारण दोनों डायोड पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस डीसी इंफॉर्मेशन अपने हाथ में है, एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। एंड एसी इंफॉर्मेशन जो अपने को ट्रांसफार्मर से मिल रही थी, अप्लायंसेस चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता थी, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का बेहतरीन काम अगर किसने किया है, तो दैट इज द टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज कॉल्ड डायोड, and that's why this is the application part of that, and hence it is important of diode. और डायोड किसने अपने डिजाइन किया, when we get the information related to the semiconductor theory। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टिंग थ्योरी के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ा, साइंस आगे बढ़ा, और इस प्रकार से नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को अपन ने स्टडी करना स्टार्ट। उसके बाद एक स्पेशल पर्पस डायोड है, दिस इज अगेन द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डायोड अपन स्टडी करेंगे।
दैट इज जीनर डायर। सिंबॉलिकली बिल्कुल ध्यान में रखना है, कभी कभी सिंबल के आधार पर क्वेश्चन आ जाते हैं सीईटी एग्जाम, काफी सिंपल सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर से किस प्रकार से वेव फॉर्म मिलेंगे, एक प्रकार की वेव फॉर्म आपको दी रहेंगी, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट रहा है, फुल रेक्टिफायर सर्किट के बाद आउटपुट वेव फॉर्म वहां पे दिया जाएगा, आउटपुट वेव फॉर्म में से वेव फॉर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में काफी सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन सीईटी एग्जामिनेशन में सेमीकंडक्टर के आधार पर पूछा। एक नया डायोड अपने आप में आया, दैट इज जीनर डायोड्स। काफी इजी कैरेक्टरिस्टिक है जीनर डायोड के। सिंबॉलिकली इसको जेड सिंबल दिया, अपन मार्केट में अगर जाएंगे तो आप लोगों को दिखा कि रिंग रहती है वहां पे, इस आधार पे अपन जीनर डायोड को आइडेंटिफाई। और मार्केट में अगर अपन जीनर को लेने जाए तो पहला क्वेश्चन रहता है उनका कि कितने ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला जीनर चाहिए। इसका मतलब जीनर डायोड स्पेसिफिक वोल्टेज पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब अपन देखेंगे जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से वैरी हुए। जीनर डायोड और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जो अभी अपन ने स्टडी किया, इसमें अगर देखा जाए कि दोनों डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग देता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप ऑफ बैटरी, अंडर दिस बायसिंग मोड को जो अपन ने बोला है फॉरवर्ड बायसिंग मोड, बोथ द डायोड दैट इज जीनर डायोड एंड पीएन जंक्शन डायोड यूज सेम फंक्शन। दोनों का फंक्शन फॉरवर्ड बायस में किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हो। लॉजिकल क्वेश्चन इस पे सेट हो सकता है, इफ यू कनेक्ट बोथ द डायोड दैट इज ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस, देन द फंक्शन विल चेंज, remain constant. The function of both the diode is same. एक्सपोनेंशियल जिस प्रकार से अपन ने बोला है कि कटिंग वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, तो यहाँ पे भी जीनर डायोड के अंदर में कटिंग वोल्टेज के बाद 0.6 वोल्ट के बाद करंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फंक्शन गेट चेंजेस इन द रिवर्स बायस ओनली, एंड दैट्स व्हाई इस डायोड को अपन ने अलग नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड। ऑर्डिनरी डायोड में अपन ने देखा कि रिवर्स बायस में वो डायोड किसी प्रकार का फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं जीनर डायोड के अंदर में कि वो डायोड रिवर्स बायस में हेवीली कंडक्ट करना है पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद, उस पोटेंशियल वैल्यू को अपन ने नाम दिया है दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड। एंड ये जो ब्रेकडाउन होता है ना, वेरी होता है 20 अपना 2 वोल्ट से लेके या 12 वोल्ट से या 6 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक वाले वेरिएशन वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले जीनर डायोड मार्केट्स में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए बेटा, फंक्शन में रिवर्स बायस में जीनर डायोड का फंक्शन किस प्रकार से चेंज है। इनिशियली अपन पोटेंशियल देंगे, डायोड कंडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेंगी तो एक ब्रेकडाउन आएगा उस डायोड का, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वो डायोड हेवीली कंडक्ट करना स्टार्ट होगा। सपोज द डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट, देन 6 वोल्ट के बाद वो डायोड हेवीली कंडक्ट करेगा, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होंगे। फिर से अपन ने पोटेंशियोमीटर से अगर पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश की तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज लास्ट पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डायोड, उस पे वो डायोड सिर्फ कंडक्शन को बढ़ाएंगे एंड करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ते जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाएगा, अब स्टॉप। सपोज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट के बाद पोटेंशियल कांस्टेंट, करंट की वैल्यू सडनली बढ़ रही है, वहां पे कंटिन्यूअस आपको वहां पे प्लॉट दिखाई दे रहा है क्लियरली, प्लॉट में करंट वैल्यू सडनली बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल को कांस्टेंट किया। सपोज उस डायोड का ब्रेकडाउन हो 12 वोल्ट, देन 12 वोल्ट के बाद पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, करंट कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से डायोड हेवीली रिवर्स बायस के अंदर में क्या कर रहा है, कंडक्शन दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर डायोड को अपन ने नाम दिया है जीनर डायोड। जो ऑर्डिनरी डायोड कंडक्शन दे ही नहीं रहा था, ऑर्डिनरी नॉर्मल अबनॉर्मल बिहेवियर दे रहा था, निग्लिजिबल कंडक्शन दे रहा था, लेकिन उसी को थोड़ा सा अपन ने मॉडिफाइड किया रिवर्स बायसिंग मोड में, तो एक नया डायोड अपने हाथ में लगा जीनर डायोड, वो हेवीली कंडक्शन करते हुए अपने को नजर आ रहा है। एंड व्हाई दिस हेवीली कंडक्शन, बिकॉज द डोपिंग कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द डायोड इन द रिवर्स बायसिंग मोड इज वेरी वेरी हाई। इस डायोड को अपन ने रिवर्स बायस मोड में क्या किया, हाईली डोप किया, और हाईली डोपिंग रहने के कारण तो जैसी ब्रेकडाउन होता है करंट कंडक्शन अपने को हेवीली मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दिस डायोड इज हेवीली कंडक्टिंग रिवर्स बायस मोड, एंड दिस डायोड वी यूज इन एप्लीकेशन पार्ट दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। डेली अप्लायंसेस रन करते समय कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है घर के अंदर में, इसके कारण इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकते हैं, टीवी डैमेज हो सकता है, फ्रिज डैमेज हो सकता है, उसको रोकने के लिए स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है अपने को। स्टेबलाइजर जहाँ पे वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, और ये जीनर डायोड क्या कर रहा है रिवर्स बायस में, सिर्फ वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहा है, करंट को हेवीली बढ़ाती जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस सर्किटरी वी यूज और दिस डायोड वी यूज एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट, मेन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस जीनर डायोड। तो इस प्रकार से अपने को डायोड के फंक्शन पता चले धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते गए। अब डायोड अपने को पता था 2 टर्मिनल डिवाइसेस, और 2 टर्मिनल डिवाइस अपने को पता चला बिकॉज ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल।
अब टू टर्मिनल डिवाइस का थोड़ा और अपन एडवांस में गए, साइंस को बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन आगे बढ़ाते गए, तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस अपने हाथ में लगा, एंड दिस 3 टर्मिनल डिवाइस इज अगेन द सैंडविच ऑफ 2 डायोड पीएन जंक्शन डायोड एनपी एंड पीएन डायोड, दोनों को कंबाइन करते हुए अपने को एनपीएन 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पता चला। दैट 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। What is transistor exactly? It is transfer of resistance. It transfers the information from low resistance value to the high resistance. That is called transistor. ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कभी भी लो रहता है, एंड दैट्स व्हाई इनपुट में फॉरवर्ड बायस मोड में रहने के कारण हेवीली कंडक्शन अपने को मिलता है, लेकिन लास्ट रेजिस्टेंस जो आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको अपन लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे बढ़ जाता है, और उसी के कारण अपन बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एम्पलीफायर। लेकिन अपन एम्पलीफायर दिखाऊंगा, लेकिन एम्पलीफायर में जो मेन एम्पलीफाइंग एजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। सन 1857 में अपन ट्रांजिस्टर यूज करते थे रेडियो में सुनने के लिए विविध भारती, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एज एम्पलीफायर अपन ने यूज किया, दैट इज ट्रांजिस्टर। It transfers the information from low resistance. Input resistance of the transistor is very, very low value, but load resistance of the transistor is very high. Therefore, potential value across the input resistance is very less, but potential value across the output resistance and load resistance is very high, and that's why is amplified the strength of the signal. Input में जो signal अपन ने दिया है उसकी strength को क्या करता है output में वो amplified करता है, and that's why we use the transistor as amplifier. It is the 3 terminal devices. Transistor is having 2 types, that is NPN transistor and PNP transistor. जब PN और NP दो डायोड को अपन कंबाइन करते हैं तो अपने को PNP ट्रांजिस्टर मिलता है। देखिए ध्यान रखना है बिल्कुल, आपको दो डायोड को सैंडविच करने के बाद अपने को 3 टर्मिनल डिवाइस मिला ट्रांजिस्टर, दो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को सैंडविच करने के बाद अपने को 2 टर्मिनल डिवाइस मिला, दैट इज डायोड। अब ट्रांजिस्टर के 3 महत्वपूर्ण टर्मिनल है, दैट इज इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इमिटर इज हेवीली डोप, सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर कौन करता है तो इमिटर, हेवीली डोपिंग रहता है। सेकंड ब्लॉक डायग्राम और ट्रांजिस्टर में अगर अपन जाते हैं इसके आधार पे भी कभी कभी ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज मॉडरेट। दूसरा जो रीजन है दैट इज बेस रीजन इज लाइटली डोप, काफी थीन रहता है, लो कॉन्सेंट्रेशन रहने के कारण, लो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन रहने के कारण चार्ज की वैल्यू काफी कम रहती है। इसका मेन पर्पज है वॉट एवर द चार्ज क्रिएट पास ऑन फ्रॉम दिस इमिटर दैट शुड बी पास टू द कलेक्टर। कलेक्टर को चार्ज को क्या करना है, पास करना है, जो चार्ज क्रिएट कर रहा है इमिटर टर्मिनल हाईएस्ट डोपिंग रहने के कारण वो चार्ज को सिर्फ क्या करना है आउटपुट टर्मिनल और ट्रांजिस्टर दैट इज कलेक्टर को देना है। वो काम कौन करता है, थीन लाइटली डोप region of the transistor, middle region of transistor, that is called base. And last transistor region जिसको अपन बोलते हैं कलेक्टर, उसको moderate doping किया अपन ने, highest doping in emitter, very little thin doping in base and moderate doping in collector. Main काम of the collector is to collect the charge whatever is passing from the emitter terminal. So how this transistor is working on the basis of this 3 terminal transistor symbolically इस प्रकार से दिखाए गए। अपने बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एरो दिखाई दिया है एंड एरो इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इमिटर टर्मिनल, क्योंकि इमिटर टर्मिनल से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो, राइट, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एरो की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड रही दैट इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो की डायरेक्शन अगर इनवर्ड रही दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से 2 ट्रांजिस्टर टर्मिनल को अपन यहाँ पे। नाउ हाउ द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर विच वी गेट, ट्रांजिस्टर में बिल्कुल ध्यान रखना है कि इमिटर टर्मिनल हाईएस्ट डोपिंग रहता है, देयरफॉर चार्ज क्रिएशन ज्यादा कहां पे रहेंगे, इमिटर में। वेरी लिटिल डोपिंग बेस की रहते हैं, निग्लिजिबल करंट वैल्यू मिलेंगे अपने को बेस में, और मॉडरेट डोपिंग कहां पे रहती है बेटा, कलेक्टर के अंदर में। एंड दैट्स व्हाई कलेक्टर करंट और बेस करंट को कॉम्बिनेशन करते हुए अपने को इमिटर करंट मिलेगा। एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इसी प्रकार से अपन देखते हैं। पीएनपी में पीएनपी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस मोड, अभी अपने ध्यान रखना है बिल्कुल, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर अपन यूज करते हैं। 3 प्रकार के एम्पलीफायर अपने पास है, ट्रांजिस्टर इन कॉमन, पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस, एम्पलीफायर इन कॉमन बेस। उसके बाद है ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उसमें जो 2 महत्वपूर्ण एम्पलीफायर अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एंड कॉमन बेस। करंट वैल्यू गेन मैक्सिमम आना चाहिए, उसके लिए अपन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का यूज करते
हैं और वोल्टेज गेन ज़्यादा आना चाहिए, इसके लिए अपन कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। कॉमन इमीटर और कॉमन बेस जो बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जिस समय आउटपुट और इनपुट के बीच में बेस टर्मिनल कॉमन रहता है, देन दैट एम्पलीफायर इज कॉल्ड कॉमन बेस एम्पलीफायर। यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम। जब इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के अंदर में इमीटर टर्मिनल कॉमन हो जाता है, उस समय कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में फेज चेंज होता है फॉर इनपुट टू आउटपुट। करंट गेन की वैल्यू अपन दिखते हैं। गेन यानी क्या है? आउटपुट क्वांटिटी डिवाइड बाय इनपुट क्वांटिटी। जितना ज्यादा गेन बेहतरीन रहेगा, उतनी ज्यादा क्वालिटी एम्पलीफायर की अच्छी रहेंगी। क्योंकि है क्या नहीं, जब अपन बिजनेस करते हैं तो उस समय धंधे में अपन ने कितना पैसा डाला था, आउटपुट में अपने को फायदा कितना मिला, उस आधार पे अपना धंधा कितना क्वालिटी वाला था वो अपन डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से जब गेन की वैल्यू अच्छी मिलेंगी, वॉट एवर द गेन, दैट मे बी अ करंट गेन, दैट मे बी अ वोल्टेज गेन, दैट मे बी अ पावर गेन इन द आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड गेन। क्या अच्छा मिलेगा, उस आधार पे अपने को क्वालिटी ऑफ ट्रांजिस्टर पता चलेगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस एम्पलीफायर हो गया या कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हो गया, तीनों दोनों एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर को जनरली अपन यूज में नहीं लाते डेली अप्लायंसेस। इस दोनों एम्पलीफायर को तीन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे अपन स्टडी करते बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एम्पलीफायर में अपन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में अपन क्या स्टडी करते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिंपली अपन इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट करंट कौन सा होगा? बेस तो कॉमन चला गया, तो इनपुट में कौन आएगा? इमीटर। इमीटर करंट इज कॉल्ड इनपुट करंट। कलेक्टर करंट ऑलवेज कॉल्ड एज ए आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज कौन सा रहेगा? बेस कॉमन में चला गया, तो बेस टू इमीटर जो वोल्टेज है बेस और इमीटर के बीच में, दैट इज कॉल्ड इनपुट वोल्टेज। और बेस टू कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा VCB, दैट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। तो इस प्रकार से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या स्टडी करें? ग्राफ का प्लॉट का नेचर बिल्कुल ध्यान में रखना है बेटा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में अपन क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं और इनपुट करंट की वैल्यूज को मेजर करते हैं। तो इस आधार पर प्लॉट से अपने को पता चला है, जिस प्रकार से अपन इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, डायोड कैरेक्टरिस्टिक जिस प्रकार से अपने को मिला ना, ट्रांजिस्टर यानी होता क्या है, इधर दो डायोड को कंबाइन किया, तो पहला डायोड क्या रहता है? फॉरवर्ड बायसिंग में रहता है, इसके कारण अपने को करंट की वैल्यू बढ़ते हुए नजर आती है। दूसरा डायोड क्या रहता है? जो एनपी जंक्शन रहता है वो रिवर्स बायस में रहता है, इसके कारण कंडक्शन अपने को क्या मिलेगा? लो वैल्यू कंडक्शन मिलेगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर स्टडी करते हैं तो प्लॉट से अपने को क्लियर हो रहा है बेटा कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। उसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं अपन? पोटेंशियल, आउटपुट पोटेंशियल बढ़ाएंगे और आउटपुट करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। आउटपुट करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि कांस्टेंट प्लॉट आ रहा है, एंड वट एवर अपन पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू पे करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है? कांस्टेंट होती जा रही है। इसके कारण आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अपने को क्या मिलते जा रहा है? कांस्टेंट मिलते जा रहा है। ये अपन ने देखा कॉमन बेस एम्पलीफायर का बिहेवियर, कॉमन बेस एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को अपन ने फिर से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या होता है? जहाँ पे इमीटर टर्मिनल कॉमन है, बाकी कुछ भी। इमीटर टर्मिनल कॉमन रहने के कारण फिर से उसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक को अपन स्टडी करेंगे, दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे अपन गेन फैक्टर इंपॉर्टेंट निकालते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को अपन बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, वो अपन लास्ट में। अब सिंपली यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में फिर से क्या है? इनपुट करंट वोल्टेज को बढ़ाना, इनपुट करंट को मेजर करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे जीरो से ग्राफ आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से वहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में फिर से अपन देख रहे हैं आउटपुट करंट को अपन एज ए इनपुट करंट अपन कहाँ पे मेजर करेंगे? एज ए बेस करंट, क्योंकि इमीटर क्या हो गया? कॉमन चला गया। और आउटपुट करंट अपन मेजर करेंगे एज ए कलेक्टर करंट। बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई तो भी एक टर्मिनल बेस कॉमन रहेगा या इमीटर कॉमन रहेगा, लेकिन आउटपुट में ऑलवेज क्या रहेगा? कलेक्टर रहेगा। तो जब इमीटर कॉमन रहता है तो उस समय बेस इनपुट लेते हैं अपन, जब बेस कॉमन रहता है उस समय अपन इमीटर इनपुट में लेते हैं। बेस कमर काफी करंट काफी लिटिल वैल्यू का है, स्मॉल वैल्यू का है, थिन डोपिंग रहती है, इसलिए अपन ने माइक्रो एमीटर को वहां पे डिजाइन किया है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई बेस करंट इज मेजर इन माइक्रो एमीटर? बिकॉज बेस इज लाइटली डोप, थीन डोपिंग। सबसे हाईएस्ट डोपिंग कहाँ पे होता है?
इमिटर के अंदर में मॉडरेट डोपिंग कहाँ पे होता है, कलेक्टर में लिटिल डोपिंग इज टेक प्लेस इन द बेस रीजन, दैट्स व्हाई वेरी थिन करंट व्हिच वी ऑब्जर्व इन द बेस रीजन। तो इस प्रकार से दोनों कैरेक्टरिस्टिक को अपन ने वहां पे स्टडी किया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द एनपीएन ट्रांजिस्टर सिंबॉलिकली हमने देखा है आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एनपीएन कैरेक्टरिस्टिक, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर को फिर से अपन दोनों बायसिंग मोड में यूज करते, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में फिर से वही दोनों कैरेक्टरिस्टिक को अपन स्टडी करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में करंट की वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं, दैट इमिटर करंट इज नथिंग बट बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और उसी आधार पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करके अपन पोटेंशियल निकालते बेटा, एंड दैट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को अपन कैलकुलेट करते हैं। नाउ मेजर क्वेश्चन जो आता है ट्रांजिस्टर पे, दैट इज ऑन द डिपेंड ऑन गेन फैक्टर। गेन जो अपन बोल रहे बार बार, दैट वी कैलकुलेट इन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर, दैट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। गेन अपन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट गेन। करंट गेन में ध्यान रखना है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इन कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। और आउटपुट करंट क्या रहता है, ऑलवेज आईसी, दैट इज कलेक्टर करंट, क्योंकि आउटपुट में कौन है, कलेक्टर। इनपुट करंट वहां पे क्या होता है, वेरी होता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट में कौन जाएगा, इमिटर, इसलिए अपन करंट गेन किसका किसका लेंगे, आईसी डिवाइडेड बाय आई कॉमन बेस। वही अगर एम्पलीफायर में चेंज कर देता हूँ, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर लेते हैं, तो अपन करंट गेन किस प्रकार से निकालेंगे, आउटपुट में क्या रहेगा, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इनपुट में क्या रहेगा, बेस करंट। तो इस प्रकार से करंट गेन अपन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट, इनपुट करंट इज इमिटर करंट, and that gain factor we decide in terms of अल्फा। अल्फा से अपन बताते हैं ये जो गेन अपन निकाल रहे हैं कौन से एम्पलीफायर में निकाल रहे हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट करंट किस में मेजर किया है बेटा, इमिटर में मेजर किया है। कलेक्टर करंट कभी भी क्या रहता है, आउटपुट में रहता है। तो गेन अपन ने जो निकाला अल्फा गेन, दैट इज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अल्फा की करंट गेन की वैल्यू बिल्कुल ध्यान में रखना है, इट इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 to 1 के ऊपर करंट गेन अल्फा नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्फा करंट गेन चेंज अगर होता है, दैट इज वेरिएशन इन आउटपुट करंट चेंज, डेल्टा फैक्टर वहां पे दिखाया है, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। उसके आधार पे अपन अल्फा करंट गेन निकालते हैं। अगर वोल्टेज गेन फाउंड आउट करना है अपने को, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज किसमें मेजर कर रहे हैं अपन, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज किसमें मेजर कर रहे हैं अपन, कलेक्टर टू इमिटर, बेस टू इमिटर वोल्टेज। इस आधार पे अपन क्या निकालते हैं, एसी गेन वोल्टेज। ध्यान रखना है गेन इज नथिंग बट आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी। अगर करंट गेन निकालना है अपने को तो अपन क्या लेंगे, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अगर वोल्टेज गेन निकालना है अपने को तो अपन क्या लेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर पावर गेन निकालना है अपने को क्या लेंगे अपन, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। लेकिन गेन का डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखना, जो अपन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कैलकुलेट करते हैं बेटा, दैट इज आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय। अब देखिए पावर गेन कैलकुलेट करना है अपन, तो अपन क्या लेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इसको बोल देंगे अपन पावर गेन। बट पावर यानी होता क्या है, इट इज नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो व्हाटएवर वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, उसके आधार पे अपन क्या निकालेंगे बेटा, पावर गेन। एक गेन फैक्टर के आधार पे एक आध क्वेश्चन तो भी सीटी एग्जाम में आराम से आता है। इसलिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांजिस्टर का, वो कॉमन बेस मोड में हो या कॉमन इमिटर मोड में हो, वो बिल्कुल गेन फैक्टर वाला ध्यान में रखना है। इसमें करंट गेन पे तो क्वेश्चन आता ही है। आधार पे अपन गेन फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। रिलेशन इन बिटवीन द अल्फा गेन एंड बीटा गेन। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में अपन ने अल्फा गेन निकाला था, बीटा गेन निकाला था। कॉमन बेस एम्पलीफायर में अपन ने अल्फा गेन निकाला था। बिल्कुल ध्यान में रखना है दोनों की रेंज। अल्फा की रेंज जो रहती है गेन फैक्टर में, वो 0 to 1 के बीच में वैरी होती है। 1 के ऊपर में अल्फा की वैल्यू नहीं आएंगे। और बीटा गेन जो अपने को मिलता है बेटा, दैट इज जो अपन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में निकालते हैं, दैट इज बीटा गेन, वो वैरी होता है 20 to 500। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बीटा गेन इज 500 और मिनिमम वैल्यू रहती है 20। अब किसी भी प्रकार के एम्पलीफायर में लो मैक्सिमम डोपिंग कहाँ पे हो रहा है, इमिटर टर्मिनल। तो व्हाटएवर इमिटर करंट जो अपने को दिखाई दे रहा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट।
कलेक्टर करंट मॉडरेट डोपिंग रहता है और बेस तो काफी थिन रहता है, निग्लिजिबल करंट बेस से अपने को मिलता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का रिलेशन अगर निकालना है गेन का कॉमन एमिटर और कॉमन बेस एम्पलीफायर में, तो अपन ने सिर्फ करंट की इक्वेशन को लिखा है। किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर के अंदर में इमिटर करंट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट टू द कलेक्टर करंट। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय आईसी, अपन ने आईसी से इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया, बट आई अपॉन आईसी को तो अपन ने क्या बोला है, अल्फा। कॉमन बेस एम्पलीफायर में आउटपुट करंट कहाँ पे मेजर करते हैं अपन, कलेक्टर में। इनपुट करंट कहाँ पे मेजर करते हैं अपन, इमीटर में। और कलेक्टर टू इमीटर करंट के रेशियो को तो अपन ने बोला है अल्फा गेन, तो यहाँ पे अपन अल्फा फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे। उसी प्रकार के दूसरा एम्पलीफायर अपन ने स्टडी किया था जहाँ पे अपने को आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट मिलता है आईसी अपॉन आईबी, वो क्या रहता है बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है आईबी अपॉन आईसी, तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और इसी वैल्यू को अगर अपन ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया बेटा 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, अपने को बीटा फैक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो क्या आएगा अल्फा अपॉन 1 बाय अल्फा, बीटा इक्वल टू। और उसी प्रकार से अगर अपने को इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है, तो अल्फा फैक्टर अगर निकालना है अपने को करंट गेन एंड इन टर्म्स ऑफ बीटा, दैट इज बीटा इक्वल अपॉन 1 प्लस बीटा। बिल्कुल ध्यान में रखना है ये दोनों रिलेशन, अगर आपको नोट कॉपी होंगी तो नोट कॉपी में बिल्कुल इसको नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ट्रांजिस्टर में अभी तक जितने क्वेश्चन सीईटी एग्जामिनेशन में आए हैं दैट उसमें से एक तो भी क्वेश्चन इस करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के आधार पे पूछा जाएगा, जहाँ पे गेन फैक्टर अपन ने कहा इन टर्म्स ऑफ अल्फा और इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा और अल्फा की वैल्यू दिया जाएगा, कभी कभी आईसी करंट की वैल्यू दिया जाएगा, कलेक्टर करंट की या इमीटर करंट की, उस आधार पे अल्फा या बीटा अपने को निकालना होगा। और इस प्रकार से अल्फा दिया रहेगा तो बीटा निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके आधार पे सीट या जेईई में एक तो भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज नोट डाउन द फार्मूला। एनालॉग सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर थ्योरी आगे बढ़ती गई, और सेमीकंडक्टर थ्योरी आगे बढ़ने के बाद दो प्रकार से अपने को कंडक्शन, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर अपने को मिले, पी टाइप और एन टाइप, और वहां से नए नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने हाथ में लगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ते गया। अब इस एनालॉग सर्किट के बाद अपन आते हैं डिजिटल सर्किट में। डिजिटल सर्किट में तीन इंपॉर्टेंट गेट को अपन स्टडी करते हैं जो बाइनरी नंबर के आधार पर डिसाइड होता है, दैट इज 0 एंड 1। ये इनपुट हाई पावर एंड लो पावर के आधार पर सर्किट को अपन, तो डिजिटल जो थ्री इंपॉर्टेंट सर्किट अपन बोलते हैं दैट इज ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब अपन देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ द ऑर गेट किस प्रकार से वर्क करता है। ये सभी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो बेसिकली लॉजिक गेट में अपने को ध्यान रखना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट एंड हाउ द बुलियन इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट। बुलियन इक्वेशन और सिंबल के आधार पे किस प्रकार से आउटपुट उसका वैरी होता है, व्हाट एवर द इनपुट विच वी आर गोइंग, उसके आधार पे सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। या ऑर गेट सर्किट में बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है, दो टर्मिनल अगर अपन ने दिया है ए और बी, तो दोनों टर्मिनल बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी जीरो इनपुट एंड द डायोड डू नॉट बी कंडक्ट करंट। आउटपुट अगर वाई निकालना है, दोनों टर्मिनल को अगर अपन ने जीरो दिया तो कंडक्शन कुछ भी नहीं होगा। दोनों में से अगर एक टर्मिनल अगर पावर 1 दिया है अपन ने, हाईएस्ट रखा है, तो उस समय कंडक्शन की वैल्यू या आउटपुट करंट की आउटपुट वैल्यू अपने को 1 दिखाई दे रहे। इसका मतलब ट्रुथ टेबल किस प्रकार से वैरी होगा ऑर गेट का, सिंबल इस प्रकार से अपन ऑर गेट कहते हैं। ट्रुथ टेबल बिल्कुल ध्यान में रखना, आउटपुट of OR gate only we get if out of these two input any one of the input is power 1। अगर किसी भी एक इनपुट हाईएस्ट वैल्यू में है तो अपने को आउटपुट हाईएस्ट वैल्यू का मिल सकता है। अगर दोनों अगर लो वैल्यू के हैं तो उस समय OR गेट का ट्रुथ टेबल क्या रहेगा। अब नेक्स्ट लॉजिकल गेट अपन स्टडी करते हैं दैट इज एंड गेट। सिंबॉलिकली एंड गेट को अपन इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, डायोड के आधार पर एंड गेट को अपन ने डिजाइन किया है। ये भी डायोड का मेन एप्लीकेशन है, अगर डायोड नहीं रहता तो अपन लॉजिकल गेट को डिजाइन नहीं करते। लॉजिकल गेट डिजाइन नहीं होते तो उसके आधार पर डिजिटल सर्किटरी अपना आगे नहीं बढ़ता। अब एंड गेट का ट्रुथ टेबल अपन किस प्रकार से वैरी हो रहा है अपन देखेंगे। काफी सिंबॉलिकली एंड गेट को इस प्रकार से बेटा अपन बताते हैं, यहाँ पे दो टर्मिनल इनपुट टर्मिनल अपन एंड गेट को दिया है ए और बी, और दोनों टर्मिनल को अगर पावर 1 अपन देते हैं, हाईएस्ट पावर देते हैं 1 इनपुट, तभी अपने को आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट इज 0। बिल्कुल ध्यान रखना ऑर गेट और एंड गेट का वेरिएशन। एंड गेट क्या है, जहाँ पे दोनों पावर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पावर हाईएस्ट होना चाहिए। और ऑर गेट क्या है, दोनों में से एक भी इनपुट अगर ऑन है
अपने को आउटपुट टर्मिनल क्या मिल सकता है, हाईएस्ट वैल्यू का मिल सकता है। इस प्रकार से थर्ड इंपॉर्टेंट जो बेसिक गेट है अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट गेट। नॉट का होता है इन्वर्टेड, वॉट एवर द इनपुट विच वी आर टू सप्लाई, देन उसका रिवर्स करने का काम कौन करता है, नॉट गेट। किसी भी चीज को नहीं बोलने का काम, इट इज नथिंग बट नॉट गेट। सिंबॉलिकली नॉट गेट को अपन ने इस प्रकार से बताया, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट अगर 1 दिया है तो 0 मिलेगा, 0 दिया है तो 1 मिलेगा। और बेसिक गेट के बाद अपन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज 2 गेट को अपन ने डिजाइन किया है, दैट इज नॉर गेट और एक्सॉर गेट। नॉर गेट को डिजाइन किया है अपन ने एंड गेट के आधार पे। एंड गेट को अगर अपन नॉट गेट कनेक्ट करते हैं तो उस समय एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, एंड गेट का जो आउटपुट है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने सर्किट को डिजाइन किया है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सर्किट सिंबॉलिकली नॉर गेट को अपन इस प्रकार से बता रहे बेटा, सिंबल ऑर गेट का जैसा ही है लेकिन सिर्फ वहां पे अपन ने नॉट, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। इन्वर्टेड ट्रुथ टेबल वैल्यूज अपने को मिलेंगी। जो ट्रुथ टेबल अपन ने ऑर गेट का स्टडी किया है उसका सिर्फ आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ऑर गेट में क्या हो रहा था कि कोई भी इनपुट अगर 1 रहा तो अपने को आउटपुट क्या मिलता था, 1 मिलता था। लेकिन यहाँ पे नॉर गेट में क्या होगा कि जब 0 0 इनपुट रहेगा, लो इनपुट रहेगा, उसी समय आउटपुट रहेगा। एंड कंप्लीट और का ट्रुथ टेबल को अपन ने यहाँ पे क्या किया, इन्वर्ट किया, और इसी के कारण अपन नॉट गेट को वहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट गेट अपन जो नैंड गेट स्टडी कर रहे हैं बेटा वो एंड का अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने एंड गेट अप्लाई किया। एंड गेट को नॉट गेट कनेक्ट करने के बाद अपने को एक नया गेट मिलता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको अपन बोलते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल किस प्रकार से वैरी होगा, जिस प्रकार से एंड गेट का ट्रुथ टेबल आपके दिमाग में है तो उसी का आपको सिर्फ क्या करना है, इन्वर्ट करना है। क्योंकि नॉट गेट का काम क्या है, नॉट गेट सिर्फ नहीं बोलता है क्या नहीं, जो ट्रुथ टेबल अपने को एंड गेट का मिल रहा है उसका अपोजिट। और एंड गेट का ट्रुथ टेबल में क्या था, एंड गेट के ट्रुथ टेबल में कहा जब दोनों इनपुट ऑन में रहेंगे उस समय अपने को आउटपुट वैल्यूज मिलेंगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इनपुट ऑन में है ना, उस समय आउटपुट वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही है। एंड जो टेबल अपने को एंड गेट का मिल रहा था उसका कंप्लीट रिवर्स अपने को कहाँ पे मिल रहा है बेटा, नॉट। अब नॉर गेट को अपन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ यूज करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने ट्रुथ टेबल किस प्रकार से चेंजेस होता है। ए इनपुट अपन ने दिया, बी इनपुट अपन ने दिया, नॉट गेट कनेक्ट करने के कारण ए का इन्वर्टेड हो जाएगा ए डैश, नॉट गेट कनेक्ट करने के कारण ए का बी का भी इनपुट का इन्वर्टेड हो जाएगा बी डैश, फिर दोनों को कंबाइन किया ए डैश और बी डैश, और उसका इन्वर्टेड इनपुट अपने को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉर गेट के। तो इस प्रकार से अपन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पे स्टडी करते ट्रुथ टेबल के एनालिसिस के आधार पे। और लास्ट गेट जो अपन यहाँ पे स्टडी किया है एक्सऑर गेट, उसका भी लॉजिकल बुलियन इक्वेशन अपन देख रहे हैं, ए इनपुट बी इनपुट ए डैश बी डैश। इस प्रकार से क्या हो रहा है, नॉट गेट कनेक्ट करने के कारण ए डैश वैरी हो रहा है, ए इज इन्वर्टेड इनटू ए डैश, बिल्कुल चेंज करना है नॉट गेट के कारण। नॉट गेट का काम वही है इनपुट को इन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे नॉट गेट कनेक्ट करने के कारण बी इनपुट फिर से क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, और दोनों को कंबाइन करते हुए अपन ने एक्सऑर गेट को स्टडी किया, दैट इज वाई इनपुट ऑफ द एक्सऑर गेट ए डैश बी प्लस ए बी डैश, और दोनों को कंबाइन करते हुए यहाँ पे अपने को एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल ध्यान में, बिल्कुल ध्यान में रखना है बेटा। एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल किस प्रकार से मिलता है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल बुलियन इक्वेशन क्या है, ट्रुथ टेबल बुलियन इक्वेशन के आधार पे किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है, उसी आधार पे डिजिटल सर्किट को अपन ने क्या किया, स्टडी किया। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर थ्योरी को अपन आगे बढ़ाते गए। और एक्सऑर गेट का बिल्कुल सिंबल ध्यान में रखना है, थोड़ा हटके सिंबल है यहाँ पे एक्सऑर गेट का, वो सिंबल बिल्कुल ध्यान में रखना है, ट्रुथ टेबल बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से सेमीकंडक्टर थ्योरी में अपन ने सेमीकंडक्टर का इनिशियल पास किया, और उसके बाद सेमीकंडक्टर को थोड़ा अपन आगे बढ़ाते गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद अपन एनालॉग सर्किट को स्टडी किया, और एनालॉग सर्किट के बाद अपन ने डिजिटल सर्किट में क्या यूज में ला सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है डिजिटल सर्किट अपनी डेली लाइफ में। अभी डिजिटल वॉच आ रही है, अपन ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते हैं तो डिजिटल सर्किट का वहाँ पे यूज में अपन लाते हैं। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर के थ्योरी के आधार पे अपन डिजिटल सर्किट को भी स्टडी करना स्टार्ट किया। अपन नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। काफी सिंपल टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेट, एंड दिस होल प्रॉपर्टी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेट एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट। सब ने देखा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सब्सटेंस की
फॉर्म में अपने को मिले। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब वही होता है जो बार मैग्नेट अपन ने रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है दैट पर्टिकुलर मटेरियल को, जो अपन ने बोला है मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन ने दिया किस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसके बाद करंट लूप और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। अपन ने बताया डायपोल मोमेंट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट and value of current passing through the cross sectional area। इसी के आधार पे अपने को डायपोल मोमेंट पता चली। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अपन ने देखा है बेटा कि करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कहा ना का करंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और करंट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास ऑन हो रहा है, उसको अपन ने नाम दिया था बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपन ने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ सोलेनाइड स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ पे सोलेनाइड अपन ने दिया, सोलेनाइड इज नथिंग बट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ द करंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपने को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता चली, फिर अपन ने स्टडी करना स्टार्ट किया कि अर्थ के अंदर में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया। फिर अपन ने डिसाइड किया कि अर्थ इज मेड अप बाय डिफरेंट आइसोटोपिक स्ट्रक्चर। वहाँ कहाँ ना कहाँ आयनोस्फीयर है जहाँ पे आयंस क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रहा है, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ करंट लूप वहाँ पे क्लियर कर रहा है, और करंट के आधार पे कहाँ ना कहाँ अर्थ के अंदर में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अपने को दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने को सोलेनाइड के अंदर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के आधार पर अपने सोलेनाइड को दिया। अगेन सोलेनाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द डायपोल मोमेंट। नो सिंगल मोनोमर्स इज exist which having the magnetic property। मोनोमर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए मैग्नेटिज्म के लिए कहाँ का डायपोल मोमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपने को बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट और डायपोल मोमेंट को अपन ने कंपेयर करना स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट के दो महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता है, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। उसके बाद करंट के आधार पर अपन ने कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में लिया है। कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अपन ने देखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में रिवॉल्व होते हैं, और मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन को अपन ने बोला है नथिंग बट फ्लो ऑफ करंट। और करंट अगर जा रहा है इसका मतलब कहाँ ना कहाँ वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अपन बोल रहे हैं। अब हम बोलते हैं ना कि फैन सर्कुलरली रिवॉल्व हो रहा है, तो फैन में अपन इलेक्ट्रिक करंट तो दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फैन की वेलोसिटी को एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है। लेकिन फैन अगर रिवॉल्व हो रहा है तो वहां ना कहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे डेवलप हो रही है। तो करंट समवॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। किसी भी सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिज्म डेवलप होने के लिए करंट रिस्पॉन्सिबल है। तो हाउ द फोर्स इज कमिंग, दैट फोर्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में। मैग्नेटिक मोमेंट का अपन ने प्रोडक्ट लिया, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंड अपॉन द रेडियस फैक्टर। तो इसके आधार पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वहाँ पे एक फोर्स डेवलप हुआ, और उस फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से अपन ने बोलता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स रहता है Q1 एंड Q2, बट दैट फोर्स इज समवॉट गिवन बाय द कूलम्स इन बिटवीन द टू चार्ज। उसी प्रकार से मैग्नेट के अंदर में दो पोल्स रहते हैं, साउथ पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, दोनों का मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग रहती है। एक के अपन ने m1 लिया, दूसरे का अपन ने m2 लिया, और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ का रेडियस से क्या हो रही, वेरी हो रही, और उस दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में फोर्स रहता है। इस फोर्स को अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे यहाँ पे यूज में लाया, और उसके आधार पे अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपने ध्यान में। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज समवॉट रिस्पॉन्सिबल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। और इस प्रकार से कोई भी मटेरियल के अंदर में, सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर है वो करंट को वैरी कर रहा है, तो कहाँ ना कहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देंगी, वो अपने को पता चले। उसके आधार पर अपन ने रिलेशन लिया इन बिटवीन द बी एंड एच। बी इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एच इज द परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके आधार पे अपन ने म्यू फैक्टर कैलकुलेट किया, और म्यू फैक्टर के आधार पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाउ वी गेट द इंटेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल टू अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। कोई भी मैग्नेट
की तरफ सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण मैग्नेटिज्म तैयार होता है, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक इंटेंसिटी आता है, एंड दैट इंटेंसिटी के कारण, उस फोर्स के कारण कहाँ ना कहाँ मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ क्या होता है, वेरी होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन ने दिया एट अ पर्टिकुलर डिफरेंट पॉइंट ऑन द मैग्नेट। अगर बाहर मैग्नेट अपन कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेंटर पे क्या किस प्रकार से वेरी होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दूसरे दो पोल्स पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे किस प्रकार से चेंजेस होगा, वो भी फैक्टर अपन ने देखा है। एंड ऑल दिस डायपोल मोमेंट समव्हाट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक लेंथ के आधार पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू वहाँ पे चेंज होती जाएगी। इस प्रकार से इक्वेटर पोजीशन में डायपोल मोमेंट किस प्रकार से चेंज होगा, उसके बाद पोल्स पे डायपोल मोमेंट किस प्रकार से चेंज होगा, वो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देन अगेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समवॉट चेंजेस विद दिस पर्टिकुलर फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट टॉर्क। टॉर्क कहाँ ना कहाँ रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलरली मोशन के लिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस को अपन ने नाम दिया है टॉर्क। टॉर्क के आधार पे एक आध क्वेश्चन कहाँ ना कहाँ वहाँ पे सेट हो सकता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में। काफी लिटिल चैप्टर है, छोटा स्मॉल चैप्टर है, लेकिन होल क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में डायपोल मोमेंट के आधार पे आ सकता है, इसलिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, करंट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके आधार पे टॉर्क के आधार पे मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे चेंजेस हो रहा है, उसके आधार अगेन टॉर्क फैक्टर इज डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा। टॉर्क अपन पर्टिकुलर एंगल से कंसीडर करते हैं बेटा, इसलिए टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एंगल थीटा पे भी क्या करता है, डिपेंड। एंगल चेंज होगा तो उस आधार पे टॉर्क चेंज होगा, उस आधार पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू वहाँ पे चेंजेस हो गए। तो इसी टॉर्क के आधार पे, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स, एंड फोर्स के आधार पे वहाँ पे मोमेंट क्या हो रही, चेंज हो रही है, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन वैल्यू भी अपन ने क्या किया वहाँ पे कैलकुलेट किया। तो वर्क डन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये सभी चीजें अपन ने यहाँ पे स्टडी किया है, वर्क डन, टॉर्क। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस किस प्रकार से वैरी हो सकता है। तो अब स्मॉल चैप्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आता है, टॉर्क पे क्वेश्चन आता है, देन वी डायरेक्टली जंप टू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में उस मटेरियल को प्लेस करते हैं, तो उस समय वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी समवॉट आती है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन निकाल देते तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम टाइप जो मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। line of magnetic line of force get passes through the paramagnetic substance. Somewhat magnetism paramagnetic substance में diamagnetic के comparison में ज्यादा रहती है, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस तो रहती है, लेकिन ये भी सब्सटेंस अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, एक्सटर्नल अगर मैग्नेटिक फील्ड अपन दे रहे, तो मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कहाँ ना कहाँ मैग्नेटिज्म होता है। उसके आधार पे अगर अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, जैसे कोबाल्ट होगा, निकल होगा, आयरन होगा, इट इज वर्किंग एज अ परमानेंट मैग्नेट समवॉट। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट विल डिपेंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस पैराफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड ऑन डोमेन स्ट्रक्चर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, देन डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर अलाइन इन द सिंगल डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हाईएस्ट रहती है। कुछ देर तक अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस किया, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो कुछ समय के बाद उस सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म भी आता है ना, इट इज वर्किंग एज अ परमानेंट मैग्नेट। आपने देखा होगा नीडल को बार मैग्नेट के पास लाते समय निडल सडनली अट्रैक्ट होती है, लेकिन उस निडल को दूसरा निडल भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस प्रकार से सीरीज ऑफ निडल अपन कनेक्ट करते हैं बार मैग्नेट से। इसका मतलब क्या है, बार मैग्नेट आयरन जैसे मैग्नेट के कांटेक्ट में है, मैग्नेटिज्म तैयार हुआ, मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिज्म है, उसके कारण बाकी निडल भी वहां से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो इस प्रकार से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाईएस्ट मैग्नेटिज्म वहां पे दिखाया है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर अपन ने टेम्परेचर के आधार पे भी मैग्नेटिज्म चेंज होता है, क्यूरीज ने वहां पे क्लियर करके बताया। Ferromagnetic substance get converted to the paramagnetic substance at particular temperature, and that particular temperature is called Curie temperature. ये बिल्कुल ध्यान रखना। It is temperature responsible for the ferromagnetic substance, iron, cobalt, like Curie laws only always follow. That ferromagnetic substance get changes to the paramagnetic nature, and that will done in the specific temperature, and that temperature is called Curie temperature.
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन कंसीडर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिस का, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा बिल्कुल ध्यान में रखना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन हो, Sc की वैल्यू दिया है 12400 इलेक्ट्रॉन हो, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट विल जनरेट टू द इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कितनी वेवलेंथ वहां पे जनरेट होंगी, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ वेवलेंथ एनर्जी वेवलेंथ के साथ चेंजेस हुए। तो अपन ने देखा क्वांटम मैकेनिकल स्टेटमेंट के आधार पे एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू, एंड एच न्यू नथिंग बट इज द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दैट इज c by लैम्बडा। तो एनर्जी की आप कहाँ ना कहाँ वेवलेंथ से क्या हो रही है, वेरी हो रही है, अपने को वेवलेंथ कैलकुलेट करना था, एंड दैट वेवलेंथ इज नथिंग बट Sc अपॉन इजी अपन ने लिया, बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में सेट हो सकते हैं एनर्जी आधार पे। सीट एग्जाम में आपने प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर देखे होंगे, तो इस प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे 12400 ये ऑलरेडी दिया गया था प्रॉब्लम के अंदर में, सिर्फ एनर्जी गैप की वैल्यू आपको पुट करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल मैच। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछा गया इन रिवर्स बायस अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड। अगर डायोड को अपने रिवर्स बायसिंग मोड में लिया, आपने देखा था इस हाउ दैट डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट। काफी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिंपल है। 4 ऑप्शन दिया, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, रिवर्स बायस में अगर डायोड को कनेक्ट किया तो पोटेंशियल बैरियर लोअर होता है, डिक्रीज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर पे कुछ ना कुछ चेंजेस आता है रिवर्स बायस मोड में, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, दैट चेंजेस द मास ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें से आपके ध्यान में बिल्कुल आया होगा, जब हमने रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्शन किया था, डिफ्लेक्शन लेयर वहां पे वर्स्ट होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर वहां पे क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, एंड दैट विल बी। इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है द कंट्रीब्यूशन, इस सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में डाले थे, एंड ऑल दिस क्वेश्चन मेरे आपके सामने ले रहा है एमसीक्यू के बाद में, ये सीटी एग्जाम में इसके पहले प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहाँ ना का बेटा पूछा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। हॉरिजॉन्टल मोड में अपने को मोबाइल फोन को लेना है ताकि आपको प्रेजेंटेशन में पूरी तरीके से दिखाई दे, क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है आपको। द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टिंग due to the electron and holes are 3/4 and 1/4 respectively. If the drift velocity of the electron is 5/2 times that of the holes at that temperature, then the ratio, not radio, of concentration of electron and holes, इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा वो वहां पे पूछा गया। टोटल करंट जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से पास हो रहा है, तो वहां से होल्स से पास होने वाला करंट का वैल्यू दिया है, कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन से कितना जा रहा है करंट उसकी भी वैल्यू दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दिया है 5/2, और उस आधार पे अपने को इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। कॉन्सेंट्रेशन दोनों का दिया है इन टर्म्स ऑफ 6/4, 5s/6, 3s/2 और 2s/3। इस प्रकार किस प्रकार से आपको सबसे पहले तो करंट डेंसिटी अपने को लेना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन ने जो कैलकुलेट किया था, दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिया है, फॉर्मूले को बिल्कुल पुट करके रखिए। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो यहाँ पे होल कॉन्सेंट्रेशन अपन ने दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द होल्स अगेन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द होल, अगेन डिपेंड अपॉन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। दोनों का सिंपली अपने को क्या लेना है, रेशियो लेना है, G/G। अपने को निकालना था व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। ये वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Ne/Ns निकालने के लिए V/ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो वहां पे दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन और होल्स दिया है, दोनों को वहां पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली अपने को मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, दैट विल बी 6/4। तो इस प्रकार से अपन ऑप्शन को क्या करेंगे बेटा, चूज करेंगे। उसके लिए सिर्फ अपने को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना। अब सिंपल डायल स्ट्रक्चर आपके सामने बेटा, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी सिंपल है। If the diode forward voltage drop to 0.3 volt, the voltage difference between the point A and B will be, A और B का voltage difference पूछा गया।
दोनों पॉइंट के बीच में आप लोगों ने डायग्राम को अगर देखा होगा तो दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, बीच में डायोड को अपन ने किया और दोनों रेजिस्टेंस की कांस्टेंट वैल्यू है वहां पे 5 किलो वोल्ट एंड 5 किलो। करंट की वैल्यू को भी दिया है 0.2 मिली एम्पियर। अब अपने को क्या करना है, ड्रॉप वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने। सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, VAB अपने को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज माइनस 0.3, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी डायग्राम के अंदर में 0.3 थी। प्रकार से प्रॉब्लम के अंदर में 0.3 दिया है। अब अपने को निकालना है VAB, पोटेंशियल्स इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए अपने को ओम्स लॉ सिंपली अपना क्या करना है, ओम्स लॉ इतने थे पोटेंशियल करंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय V इक्वल टू IR अपन जो रेशियो लेते हैं ओम्स लॉ। अब R की वैल्यू वहां पे डायग्राम के अंदर में आपको दिया है R1 प्लस R2 मिली एम्पेयर में, इसलिए अपन ने क्या किया वहां पे चेंजेस किया 10 टू द पावर किलो में, इसलिए अपन ने क्या किया वहां पे 10 टू द पावर 3 लिया। डायग्राम पे बिल्कुल ध्यान रखो। यहाँ पे करंट की वैल्यू दिया है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऑलरेडी डायग्राम में दिया है करंट मिली एम्पियर में, इसलिए इसको अपन ने एम्पियर में कन्वर्ट किया। वोल्टेज निकालना था अपने को, इसलिए अपन ने सिंपल ओम्स लॉ के आधार पर वोल्टेज की वैल्यू निकाला, और वोल्टेज अपने पास आ रहा है उसको अपन ने 0.3 से क्या किया बेटा, वोल्टेज की वैल्यू ऐड किया VAB को 0.3 प्लस 2 वोल्टेज जो अपन ने कैलकुलेट किया डायग्राम के आधार पे, और जो वैल्यू आया वोल्टेज का दैट इज 2.3। और ड्रॉप डाउन वोल्टेज अपने को पॉइंट A टू B निकालना था। 0.3 वोल्टेज डायग्राम के अंदर में प्रॉब्लम के अंदर में दिया गया था। ड्रॉप डाउन वोल्टेज निकालने के लिए सिंपली अपने को ओम्स लॉ को अप्लाई करना था, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया था और करंट की वैल्यू ऑलरेडी। अब IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इज इन द फॉर्म इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो अपन बोलते हैं करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। अपने डायोड के दोनों कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इस चारों डायग्राम के आधार पे किस कौन से डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे सटीक होंगी। तो चारों डायग्राम से अपन देखते हैं। फर्स्ट इसमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन प्लॉट दिया, आपने बोला है कि कटिंग वोल्टेज क्रॉस करने के बाद ही डायोड कंडक्शन करता है, इसका मतलब पहला डायग्राम तो आएगा। दूसरे डायग्राम में भी डायग्राम इस प्रकार से दिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे अपन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, इसलिए दूसरी डायग्राम भी है। तीसरी डायग्राम कहाँ ना कहाँ इस प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पर्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू के बाद करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और रिवर्स बायस मोड में अपन देख रहे हैं कि मिनिमम लीकेज करंट वहां पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द डायोड, इसलिए थर्ड ऑप्शन somewhat वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है फॉर द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन वर्ड। और ये भी कैरेक्टरिस्टिक हावी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जीरो से प्लॉट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपन ने बोला कि कटिंग वोल्टेज जब तक आता नहीं तब तक डायोड किसी प्रकार से कंडक्शन करता है। तो विदाउट एनी सिंगल एक्सप्लेनेशन वी कैन ओनली एक्सप्लेन द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड प्लॉट। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल डिजिटल सर्किट के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, इन अ गिवन सर्किट as shown in the two input waveform A and B are applied simultaneously, then what will be the resultant output of the waveform? अब यहाँ पे देखिए सर्किट अप्लाई किया, किस लॉजिक गेट को ये सर्किट दे रहा है, और गेट एक सिंबॉलिकली इनपुट A और B है, यहाँ पे इनपुट A और B को नॉट गेट कनेक्ट किया है बेटा, यहाँ ये नॉट गेट का सिंबल है आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉट गेट का सिंबल है। इनपुट ये दिया है, इनपुट बी वेव फॉर्म के आधार पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये ऊपर वाली जो लेयर है ना आपको दिखाई दे रही पूरी, ये 1 इंडिकेट कर रहा है, नीचे डाउन पाथ जो है 2 0 इनपुट इंडिकेट कर रहा है, दोनों इनपुट है ध्यान रखो 1 0, इधर भी 1 0 0 अगेन 1, तो इनपुट क्या रहेगा यहाँ पे वेव फॉर्म के आधार पे 1 0 1 0, बी इनपुट क्या रहेगा वहां पे 1 0 0 1। अब अगर ये इनपुट अपन दे रहे नॉट गेट को तो 1 0 1 0 विल चेंजेस व्हाइल गोइंग टू द और गेट को जाने के पहले वो इनपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्ट इनपुट क्या आएगा यहाँ पे 1 का 0 1 0 1, उसी आधार पे सेकंड इनपुट बी जो इनपुट है इन्वर्टेड होके क्या आ जाएगा 0 1 1 0। इस प्रकार से इनपुट अपन ने क्या दिया है और गेट को दिया, और और गेट का ट्रुथ टेबल बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इस आधार पे आउटपुट क्या रहेगा, तो और गेट का आउटपुट के वेवफॉर्म के आधार पे अगर अपन देखते
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इनपुट ए इज इन द सीक्वेंस 1010, अपन ने इसके पहले वेवफॉर्म के आधार पे देखा था, इनपुट बी इन द सीक्वेंस 1001, सीक्वेंस इज इन्वर्टेड बिकॉज नॉट गेट इज कनेक्टेड इज देयर, एंड दस द इनपुट टू और गेट क्या हो जाएगा, इन्वर्ट करने के बाद इसका 1 का 0 हो गया, यहाँ पे 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, इनपुट हो गया ये, सेकंड इनपुट क्या आ जा रहा है, 1 का 0, 0 का 1, 1, इस प्रकार से जा रहा है। अब ये दोनों इनपुट, ए इनपुट दिस और बी इनपुट, और गेट को अपन ने कनेक्ट किया, और गेट का ट्रूथ टेबल आपको क्या बताता है कि जब कोई भी एक इनपुट 1 रहता है तभी अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। दोनों इनपुट अगर 0 रहता है उस समय आउटपुट 0 रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म इस डायग्राम के लिए क्या हो सकती है, अप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, बाकी सभी इनपुट क्या है बेटा 1 1 है, और कोई भी तीन इनपुट अगर 1 1 रहा ये और बी, तो अपने को आउटपुट क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। तो यहाँ पे तीनों इनपुट क्या है 1 1 है, तो ए की इनपुट क्या है 0 है। तो इस प्रकार से डायग्राम ए विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट ऑफ आर गेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांजिस्टर। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था सेमीकंडक्टर में, जो सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन सेट होगा तो समवॉट लॉजिकल क्वेश्चन पीएन जंक्शन डायोड पे पूछा जा सकता है। कभी कभी बैंड स्ट्रक्चर पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, जो अपन ने लिया यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर के आधार पे एनर्जी वैल्यूज निकालने के, उसके लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आ सकता है, और ट्रांजिस्टर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन द फॉलोइंग कॉमन इमीटर सर्किट, और ट्रांजिस्टर पे जो क्वेश्चन पूछा है वो गेन फैक्टर पे, बीटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन फैक्टर बीटा दिया है बेटा 100, VC दिया, voltage in between common collector to emitter is 7 volt, voltage in between base to emitter is negligible, RC value दिया है, that is resistance at a collector 2 kilo ohm, then what will be the IB value, IB वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है। सर्किट डायग्राम दिया है, डायग्राम पे बिल्कुल फोकस करना है, ट्रांजिस्टर डायग्राम है, यहाँ पे RC दिया है बेटा, IC दिया है, IB दिया है, वॉट एवर द वोल्टेज अपन अप्लाइड कर रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू भी दिया है, VBE इनपुट वोल्टेज दैट इज 15 वोल्ट, और बीटा फैक्टर ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर में 100 दिया था, VC कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज प्रॉब्लम के अंदर में दिया, और बेस टू इमीटर का वोल्टेज यहाँ पे डायग्राम के अंदर में दिया। IC अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बीटा अपने को ध्यान में रखना है, करंट गेन, करंट गेन इज नथिंग बट आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट कौन सा, कलेक्टर करंट, डिवाइडेड बाय इनपुट करंट क्या आएगा बेटा, बेस करंट। अब आउटपुट करंट अपने को बेस करंट कैलकुलेट करना था, बेस करंट निकालने के लिए IC अपन ने क्या किया, डिवाइडेड बाय बीटा आ गया यहाँ पे। अब IC सबसे पहले निकालना अपना इंपॉर्टेंट काम है, तो IC निकालने के लिए डायग्राम का सपोर्ट अपन ने लिया है, दैट इज 15 वोल्ट यहाँ पे दिया है इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, और वोल्टेज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय IC, 7 यानी क्या होता है बेटा यहाँ पे 7 वोल्ट नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज, बिल्कुल ध्यान रखना है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻³ और इस आधार के अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले IC कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ पे चेंज करने के बाद, और IC निकालने के बाद अपन ने बीटा फैक्टर निकाला, दैट इज करंट गेन फैक्टर, एंड दैट करंट गेन IC अपॉन IB, IC की वैल्यू 4 एम्पीयर अपन ने कंसिडर किया, बीटा ऑलरेडी दिया गया था, IB अपना निकालना मेन काम था, वो IJ अपन ने कैलकुलेट किया 0.04 मिली एम्पीयर। तो इस प्रकार से मीन प्रायोरिटी टू कैलकुलेट द IC यूजिंग द डायग्राम। Again, the value of A dot B bar dot A plus B. What will be this value? A equation, Boolean equation दिया है, उस इक्वेशन का आउटपुट क्या रहेगा, वैल्यूज क्या रहेंगे। ऑप्शन A डॉट B दिया है, दूसरा है A डॉट B बार प्लस A डॉट B बार, B बार डॉट A, none of these option. Solution is 6. अब Boolean इक्वेशन को सिंपली अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। Boolean इक्वेशन है A डॉट B बार डॉट A डॉट B। बुलियन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एसोसिएट प्रॉपर्टी के आधार पे A प्लस B, A प्लस B, उसके बाद अपन ने A से इसको सॉल्व किया, A बार इंटू A प्लस A बार इंटू B, उसी प्रकार से B बार से अपन ने इसको सॉल्व किया, B बार इंटू A B। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, A बार टू A एंड B बार टू B यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बेटा, दोनों इनपुट बुलियन इक्वेशन में कैंसिल हो गए, देन व्हाट विल रिमेन, A बार B डॉट B बार, और इसी इक्वेशन को
अपन ने जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट। तो बुलियन इक्वेशन में उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद क्या वैल्यू आती है, इसके आधार पे भी एक आध क्वेश्चन आपके सीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड के कुछ ऑप्शन ले लेते हैं। आपने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के आधार पे क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे कंपैरिजन किया है, उसके आधार पे भी सीट एग्जाम्पल में सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मूवमेंट इज 60 एम्पीयर पर मीटर, pointing geographically north at a certain place where the horizontal component of the earth magnetic field is 40 Weber per meter square. Experience a torque. What is declination at this place? अब डिक्लिनेशन एंगल निकालना है अपने को, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 25 डिग्री। डिक्लिनेशन निकालने के बाद the compass needle is free to rotate in the horizontal plane and pointed along the magnetic meridian, so that it's pointing along the geographical meridian. It will experience a torque due to the horizontal component of the earth magnetic field, where theta is the angle between the geographical and magnetic meridian called the angle of declination. और वो angle of declination निकालने के बाद तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन सिंपली अप्लाई करते हैं, दैट इज एम बी साइन ऑफ थीटा। देन साइन ऑफ थीटा के आधार पे अपन वहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, और उसके आधार पे जो ऑप्शन अपने को मिलेगा दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपन जाते हैं, कंसीडर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट्स जियोग्राफिकल लेंथ। शॉर्ट मैग्नेट है, बिल्कुल सीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में, ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन करके रखो। कंसीडर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ज्योमेट्रिक लेंथ दिया है, पूछा गया है इट विल बी 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है अपने को। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 6/4 इज टाइम्स इट्स मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ प्रॉब्लम के अंदर में दिया है 10 सेंटीमीटर, सिंपली अपने को 6/5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ को वहां पे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल फॉर्मूला है, 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उस आंसर को अपने को क्या करना है, चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में रिजल्टेंट फोर्स किस प्रकार से एक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज अपने क्वेश्चन देखते ही बराबर 4 ऑप्शन के आधार पे आप इजीली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मेकिंग 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अपने को क्या करना है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने के बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट में एक्ट होता है और उसी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट विल डिपेंड अपॉन द ससेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल। द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 499। द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला अपन पुट करेंगे म्यू टी इंटू म्यू, इसके आधार पे सिंपली अपन ससेसिबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को निकालेंगे बेटा। म्यू 0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दिया है 4.45 × 10⁻⁻⁷, और इस आधार पे अपन उस ऑप्शन को वहां पे क्या करेंगे, इससे। देन पूछा गया है सीईटी में परमानेंट क्वेश्चन, कभी कभी अपन बोल सकते हैं अपन, क्योंकि उसी आधार पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, वेरी होती है। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड टू अ टेंपरेचर अबव इट्स क्यूरी पॉइंट, the material is permanently magnetized, remains ferromagnetic, behave like a diamagnetic material, behave like a paramagnetic material. Curie temperature is the concept we use for the ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance is a highly magnetic substance. It may work as a permanent magnet, and if we heated that particular substance at the particular temperature, and that temperature is processed the Curie temperature, then that substance is converted to the paramagnetic substance, and therefore last option will be correct. इस प्रकार से क्यूरी टेम्परेचर उसी को बोला है जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर क्या होता है, चेंजेस होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस के आधार पे पूछे जा सकते हैं। नाउ वी स्टॉप हियर, आपको इस पे स्टडी करना है। ओनली यू पुट द फार्मूलाज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मेक अ चार्ट एंड डिस्प्ले इन योर रूम एंड गो थ्रू दैट चार्ट। थैंक यू वेरी मच।